let me see also if it is being recorded. And yes, okay. So chapter 13, photosynthesis. And with the first, let's go through the syllabus specifications as per our 2021 syllabus. Okay. So first beta is objective 13.1 है photosynthesis as an energy transfer process. So we will be talking about energy transfer as ATP and reduce NADP from light dependent state. We will talk about Kelvin cycle also. We will talk about light dependent independent stage in the chloroplast, then role of chloroplast and the pigments, interpret absorption and action spectra of chloroplast pigments. What else? Chromatography. इसका पूरा experiment. And then both the light dependent independent states separately. So this is inshallah what we'll try to do. Or time हुआ तो we'll continue with the next topic as well. At least C4 plants that we'll try to cover today. So let's begin then. First, whenever we talk about photosynthesis, so let's just review what chloroplasts are. और उसके बाद we'll actually start with the discussion. So tell me of chloroplast के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ about the structure, about the function. Ma'am, chloroplasts are double membranous organelles found in the green leaves of plants, and they contain photosynthesizing pigments called chlorophyll. सही और जो डबल मेम्ब्रेन है बेटा इट इज द सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है सो इट हैज एग्जैक्टली द सेम फंक्शंस वही कंट्रोल करेगी मूवमेंट इन एंड आउट ओके सो यू जस्ट टॉक्ड अबाउट कि यस इट हैज अ डबल मेम्ब्रेन अब ये एएस में तुमने पढ़ा होगा बट इस टॉपिक में बेटा अगर फोटोसिंथेसिस हमें पढ़ना है तो वी नीड टू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर देन इट हैज इट्स ओन डीएनए आल्सो सो इट मींस बेटा इट कैन रेप्लिकेट एंड द राइबोसोम्स आर 70S. So chloroplast के अलावा बेटा कौन दूसरा ऑर्गेनेल कौन सा है that has a 70S ribosome and its own DNA? Mitochondria. Good. ठीक है अच्छा so this is बेटा we'll be discussing about thylakoids. ठीक है ये these are also बेटा like membrane bound discs. This is where the light dependent reaction will take place. ठीक है and we will talk about the stroma also. ठीक है this matrix here where the light independent reaction will take place. तो हम सबके बारे में बेटा फिर अलग अलग बात करेंगे okay so let's just move on to that and here already बेटा we have discussed the structure ठीक है we have talked about thylakoid now they are stacked in a structure known as grana so this is better this whole thing will be known as grana as thylakoid is stacked together and they are joined together by lamellae so these green structure that we are looking at बेटे तो उसको stromal lamellae भी बोलते हैं they join the two grana together and these are the topics that we'll talk about today. Light dependent reaction takes place in the thylakoid. Light independent reaction uska dusra naam hai Kelvin cycle, it takes place in the stroma. And we have talked about DNA and ribosomes. Okay then. Okay, so this is just another view. हमने सब discuss कर लिया so we are going to start with photosynthesis. अच्छा बेटा photosynthesis का process basically बेटा what's the reason for this? Why talk about photosynthesis? It converts organic carbon into usable carbon for mammals and ठीक है बेसिकली बेटा इट्स अ प्रोसेस ऑफ कार्बन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन बेसिकली कर रहे हैं ठीक है यू आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन यूज करके वी आर एक्चुअली कन्वर्टिंग देम इनटू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज कार्बोहाइड्रेट ठीक है अच्छा सो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने इसलिए बात की बिकॉज दिस होल प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट ठीक है सो फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा इट इज द ट्रैपिंग और फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है and its subsequent reduction to carbohydrate. Subsequent reduction क्यों कह रहे हैं बेटा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 जब इसके अंदर से तुम ऑक्सीजन रिमूव कर दोगी तो केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा ठीक है सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो लाइक रिडक्शन ठीक है सो इट विल बी देन कन्वर्टिंग टू कार्बोहाइड्रेट और भी इसके कंपोनेंट्स हम आगे पढ़ेंगे बट फॉर नाउ बेटा दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ओके देन ठीक है अब दिस इज व्हाट बेसिक जो हमने बेटा अभी डायग्राम के थ्रू व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड so this is what happens during like sunlight ki time pe what is happening this sunlight is being absorbed ठीक है and it is being trapped by the chlorophyll तो ये जो pigments होते हैं they are found in the thylakoids ठीक है क्योंकि light dependent stage हो रही है thylakoid के अंदर so chlorophyll pigments are there chlorophyll A and B chlorophyll A ज्यादा common होता है
So that is trapped, ठीक है, but then this water is also coming from the source. Water कहाँ से आ रहा होगा बेटे? From the root. ठीक है, from the roots, ठीक है, वहां से आ रहा है water, ठीक है, and it can also be absorbed in through the stomata. So we have water, ठीक है, and we have ठीक है, carbon dioxide. So carbon dioxide और water, they combine together in the presence of light, ठीक है, and what products you get? एक प्रोडक्ट होगा आपका स्टार्च, या बेसिकली अभी हम ग्लूकोज ही पढ़ेंगे पहले, ठीक है, प्लस यू विल गेट ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक है. सो दीज टू प्रोडक्ट्स विल बी सीन. ओके, ये तो सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू था. नाउ दिस इज द केमिकल इक्वेशन दैट यू शुड बी फेमिलियर विद, इसकी बैलेंसिंग एंड एवरीथिंग. So we need 6 molecules of carbon dioxide. They will react with 6 molecules of water, and you will get, ठीक है, this is glucose plus oxygen. यहाँ तक क्लियर है बेटे? Yes, ma'am. Okay. So अब light dependent को basically बेटे the name itself tells you light dependent इसीलिए कह रहे हैं because it takes place in the presence of light. और light independent, ठीक है, it like मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेरे में हो रहा है, we just do not need light for that. तो वो स्ट्रोमा में हो रहा है, also called as dark reaction also. Okay, अच्छा, light dependent reaction can only take place in the presence of suitable pigments. So we will talk about those pigments in a while बेटे. And these pigments can absorb certain wavelengths of light. क्योंकि आपके सिलेबस में बेटा ये है सारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस बेटे. ये शुरू में भी तुमने एएस का जब चैप्टर 1 पढ़ा होगा, जब माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन पढ़ा होगा, तो ये चीज वहां भी देखी होगी. सो जनरल बेटे जो वेवलेंथ जो विजिबल आपकी लाइट है, ठीक है, दिस इज इट्स रेंज. उसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेके अराउंड 700 नैनोमीटर तक, ठीक है. ये एक विजिबल लाइट की रेंज है. तो सनलाइट इज नेचुरली, जब हम बात करते हैं बेटे, सनलाइट वाइट होती है, ठीक है, बट देन इट ब्रेक्स इनटू दीज डिफरेंट कलर स्पेक्ट्रम्स आपको नजर आते हैं, ठीक है. सो दिस रेंज इंक्लूड्स, ठीक है, इसमें रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन. तो वो शायद तुमने सुना भी होगा एक निमोनिक जो जिसको अक्सर विबगियर भी बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही बोलते हैं ना, या रॉय जिबिव बोल रहे होते हैं, ठीक है. सो दीज आर द 7 कलर दैट इट ब्रेक्स इनटू. So light is visible to us, but the thing is बेटा wavelengths are invisible. मगर ये wavelengths जो है ना, these are actually used by the plants. तो वो जो आपके pigments से chlorophyll, they use those wavelengths. ठीक है, wavelengths हमें नजर नहीं आती, we can only see the light, but this wavelength is actually used by the plants in the process of photosynthesis. अब कैसे use होती है बेटा, let's have a look here. अच्छा, this is बेटा something that you should know. There are 4 pigments that we'll talk about. 2 groups होते हैं basically. 2 groups में बेटा, one is known as primary pigment. और primary pigments के अंदर, ठीक है, we get chlorophyll. But chlorophyll भी बेटा 2 किस्म के, chlorophyll A और chlorophyll B, ठीक है. So these are known as the primary pigments, ठीक है. अच्छा, chlorophyll A की जो color pigment है, generally बेटा like if you actually look, color वो चीज है बेटा जो color तुम्हें reflect होके नजर आ रहा है, ठीक है. तो जनरली इस तरह के जो भी आपको लीव्स होंगे, दे वुड लुक लाइक येलो ग्रीन, उनका कलर मतलब इस तरह का बेसिकली है, ठीक है. क्लोरोफिल बी जिनमें होगा, दे विल एक्चुअली लुक एज ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, ब्लू टू ग्रीन, ये उनका कलर रेंज होगा. मगर ये वो प्लांट्स है बेटे जिसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है. और अब से थोड़ी देर पहले मैंने कहा था क्लोरोफिल ए ज्यादा कॉमन है, ठीक है. दूसरा किस्म का जो ग्रुप होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्रुप. तो एसेसरी ग्रुप जो होता है, एसेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं बेटा, दे आर नोन एज कैरोटिनॉइड्स. तो जैसे कैरेट का कलर अगर तुम इमेजिन करो ऑरेंज होता है, तो इस कैरोटिनॉइड्स में भी 2 पार्ट्स आते हैं बेटा, बीटा कैरोटीन विच इज ऑरेंज इन कलर, और ज़ैंथोफिल विच इज येलो इन कलर, ठीक है. तो ये पिगमेंट्स प्लांट्स के अंदर होते हैं, ठीक है. ग्रीन अक्सर विजिबल ज्यादा होते हैं. अक्सर ऑटम में तुमने देखा होगा वही ग्रीन लीव्स ऑरेंज हो जाते हैं. तो वो ऑरेंज क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें पिगमेंट सारे मौजूद होते हैं. मगर उस केस में क्योंकि सनलाइट नहीं मिल रही है, ठीक है, लाइक प्रोडक्शन नहीं हो रही फोटोसिंथेसिस की, तो ये कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं ऑरेंज कलर पे वहां पर ऑब्वियस हो जाता है. ये वाला पिगमेंट आपको नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है. बट रिमेंबर दीज नेम्स ऑफ द पिगमेंट्स बेटा. सो ये आपके प्राइमरी पिगमेंट्स हैं और ये आपका एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है बेटे. Ma'am, does this mean हाँ that the पूछो. yellow, green, blue, green pigments are not being absorbed? Like the wavelengths of those are not being absorbed by हाँ, अभी हम आगे chlorophyll इसका in ग्राफ देखेंगे ना, तब तुम देखना कि बेसिकली क्या Okay. होता है कि वो ये वाली लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब जो एक्सट्रीम्स पे होती है, तो विजिबल ये वाली होती है. तो पिगमेंट का, क्योंकि ये पिगमेंट्स कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, तो दिस इज व्हाट विल एक्चुअली वी विल बी एबल टू सी. अभी जब ग्राफ देखोगे ना कलर स्पेक्ट्रम का, पे देखना इसको आगे. ये देखो बेटे, दिस इज द ग्राफ.
अच्छा, अब क्लोरोफिल देखिए, वी नो बेटा इट्स अ पिगमेंट और दिस पिगमेंट कैन एब्जॉर्ब लाइट, सो वी नो बेटा इट कैन एब्जॉर्ब लाइट। सो बेसिकली देखो, अब इफ यू लुक एट दिस कर्व हियर बेटे, सो राइट नाउ अभी यहाँ पे ये बेसिकली बात करें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की। सो इफ यू लुक एट दिस बेटा, ये जो ये आपको कर्व नजर आ रहा है, इट इज एक्चुअली एब्जॉर्बिंग दिस लाइट, तो it is absorbing blue, ठीक है, and it is absorbing this one which is around like seems like yellow orange, ठीक है। सो डिफरेंट होंगे, ठीक है, दे कैन एब्जॉर्ब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट। यहाँ पे मैंने आपको जनरल व्यू दिखाया है, तो एक्सट्रीम्स पे अगर देखो तो रेड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, ऑरेंज रेड को, और देर एब्जॉर्बिंग ब्लू। ये जो लाइन तुम्हें नजर आ रही है, दिस इज व्हाट विल अपीयर टू यू, जो हमें नजर आएगा, ठीक है, दिस इज द थिंग दैट विल रिफ्लेक्ट, और हमें वही चीज नजर आती है जो रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ठीक है। सो दिस इज द कलर रेंज दैट यू विल बी एबल टू सी, ठीक है। तो जैसे अभी हमने थोड़ी पहले कहा ना कि ब्लू ग्रीन या ग्रीन येलो, ठीक है, तो ये वाली रेंज है जो हमें नजर आएगी, ये जो फ्लैट लाइन तुम्हें नजर आ रही है। और ये वाली सारी लाइन, वो ये वाले जो कलर है ब्लू, वो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो चीज एब्जॉर्ब होती है वो हमें नजर नहीं आती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई बेटे? Yes, ma'am. ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बिकॉज ऑल द ब्लू कलर्स आर बीइंग एब्जॉर्ब, ऑल द रेड कलर्स आर बीइंग एब्जॉर्ब, सो दिस इज द रेंज व्हाट यू विल बी एबल टू सी, ठीक है। सो व्हाटएवर इज रिफ्लेक्टेड, दिस पास ऑन टू द रेटिना एंड दिस इज व्हाट वी आर एबल टू सी। सो ये एक सिर्फ जनरल ओवरव्यू फिलहाल बताया है, ठीक है, कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट मोस्ट इफेक्टिवली, ठीक है। तो आपके कलर स्पेक्ट्रम में अगर तुम देखो, ब्लू आ रही है 400 नैनोमीटर वाली रेंज में, ठीक है, 400 टू 500, और जो रेड है बेटा अराउंड लाइक ये 600 टू 700 की रेंज में, ठीक है। सो दीज विल बी एब्जॉर्ब और एनीथिंग इन बिटवीन विल बी रिफ्लेक्टेड। सो दैट्स द रीजन बेटा हमें ग्रीन कलर ज्यादा नजर आ रहा होता है। क्लियर है बेटा ये चीज? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब नाउ यहाँ पे बेटा इन्होंने सारे पिगमेंट्स को अलग अलग बताया है। तो दिस डार्क सॉलिड लाइन इज फॉर क्लोरोफिल ए, दिस डॉटेड लाइन अगेन फॉर क्लोरोफिल बी, और बिल्कुल इस तरह के जो स्मॉल डॉट्स हैं दिस फॉर बीटा कैरोटीन। तो तीनों की अलग अलग उन्होंने आपको दिखाया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हाउ डू दे एब्जॉर्ब लाइट। बट इन ऑल द केसेस बेटा तुम जनरल ट्रेंड देखो कि ब्लू की तरफ ही देर एब्जॉर्बिंग मोर, ठीक है, और रेड की तरफ है। लेट्स स्टार्ट विद दिस सॉलिड लाइन बेटा, ये वाली जो क्लोरोफिल ए के लिए। तो नाउ लुक एट द ट्रेंड बेटा, देखिए ये कर्व कहाँ पर है, ब्लू लाइन, इट मींस दिस ब्लू एरिया, देखिए दिस ब्लू लाइट इज बीइंग एब्जॉर्ब, ये फ्लैट हो गया, इट मींस दिस इज व्हाट यू विल बी एबल टू सी। और फिर यहाँ पे तुम देखो ये रेड पे आया, तो सिर्फ तो दो एक्सट्रीम जो एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, ब्लू है और रेड है, ठीक है। तो ब्लू आ रहा है अराउंड 400 की रेंज में, रेड आ रहा है 700 में। अच्छा, अब जरा क्लोरोफिल ए से क्लोरोफिल बी को मैच करो, ये जो थिक डॉटेड लाइन तुम्हें ये वाली नजर आ रही है, तो देखो क्लोरोफिल बी जो है ना, वो थोड़ा सा स्लाइटली आगे जाके थोड़ा सा ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल है बिल्कुल ब्लू को करिए, थोड़ा सा ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब करिए, एंड देन बेटा यू सी हियर थोड़ा सा वो ऑरेंज के ऊपर भी आ गई है, ठीक है। सो हर पिगमेंट की एक अपनी एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है। देन लुक एट दिस वन, बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो कैरोटीन है। अब बीटा कैरोटीन, रिमेंबर हमने बात की थी कि हमें वो ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है, ठीक है, ऑरेंज है, या दूसरा उसमें याद है कि xanthophyll भी था जो येलो है। सो इफ यू फॉलो दिस लाइन हियर बेटा, ये डॉटेड वाली जो है, देखो ये किसको एब्जॉर्ब कर रही है, ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रही है, तुम्हें यहाँ पे कर्व नजर आ रहा है। एंड इफ यू लुक एट द फ्लैट पार्ट हियर बेटे, तो इवेंचुअली, ठीक है, यहाँ पे आके वो खत्म होगी, तो इट विल एक्चुअली अपीयर येलो ऑरेंज टू यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आके देखो कंटिन्यू हो ही नहीं रही है, नजर ही नहीं आ रही है हमें आगे यहाँ, ठीक है। सो दिस विल अपीयर ऑरेंज टू यू। सो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है जो आपका क्वेश्चन भी सवाल में आ जाता है। सो लेट्स रीड दिस, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड बीटा कैरोटीन, दे आर हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक पिगमेंट्स। अभी हम इसकी बात करेंगे बेटा, हम इसे हाइड्रोफोबिक क्यों कह रहे हैं, ठीक है। इसका ताल्लुक है अभी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद है बेटे, हाइड्रोफिलिक हेड्स और हाइड्रोफोबिक टेल्स, Yes, ma'am. याद है? तो अभी हम वहां पे डिस्कस करते हैं। So these pigments are actually located in the hydrophobic region. So they are hydrophobic. They are found in the thylakoid membrane. तो अब इमेजिन करो बेटे, ये बिल्कुल उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह लिपिड बाइलेयर, ठीक है। सो दीज आर हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक पिगमेंट्स, जब भी ये पिगमेंट्स उस मेम्ब्रेन के अंदर हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड बी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, एंड नाउ वी नो व्हाई बेटे, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कौन से कलर्स कर रहे हैं, ब्लू और रेड, सो यू आर एक्चुअली एबल टू सी ग्रीन। Beta carotene is responsible for the orange color in the carrots. So that's the reason we just saw that. So ये ज़्यादातर green को भी absorb कर रहे हैं and it is appearing orange to us. Each pigment has a unique absorbance spectrum. Absorption spectrum समझ आया बेटा तुम्हें? Yes, ma'am. ठीक है? Okay.
अच्छा चलो लेट्स सी कि इसमें भी अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर है तो ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल it absorbs red and blue light better. So this is what we just saw with it. Blue and red light better as compared to green. Green light is reflected, which makes chlorophyll, and as a result, the plants and chloroplasts appear green. So now you understand, Bede, why they appear green in color? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अच्छा थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपसे बात की थी हाइड्रोफोबिक की, तो लुक एट दिस पार्ट। अब अगेन दिस डायग्राम इज फ्रॉम योर बुक। सो जनरली ये जो आपको दिखाई ना बेटा, ये इन्होंने थाइलाकोइड मेम्ब्रेन दिखाई है, ठीक है। एंड अगर तुम इसको रिकॉल करो जो हमारे सेल की मेम्ब्रेन होती है, तो देयर आर हाइड्रोफिलिक हेड्स है बेटे, ठीक है, और बीच में यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है, ठीक है। एंड सेम इज द केस हियर बेटा, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। अब जब तुम पोजिशनिंग देखो यहाँ पे, ये एक्चुअली बेटा आपको दिखाया है इन्होंने, ये पिगमेंट्स दिखाए, ठीक है। सो इन पिगमेंट्स में यू सी बेटे जो स्मॉलर नजर आ रहे, दीज आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन से थे बेटे? बीटा कैरोटीन और दूसरा कौन सा था? ज़ेंथोफिल। सो इनिशियली लाइट, वी नो बेटा कि पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले यही बात की है। तो द एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट फर्स्ट, देन दे टेक इट टू द प्राइमरी पिगमेंट। प्राइमरी पिगमेंट है जहां पे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा। सो दिस जनरली बेटा इज क्लोरोफिल ए, बट देन अगेन क्लोरोफिल बी भी होता है, क्लोरोफिल ए इज मोर कॉमन, बट एसेसरी पिगमेंट टेक दिस लाइट एनर्जी टू द प्राइमरी पिगमेंट। अब समझ आया? तो ये वाली जो साइड है बेटा, ये हाइड्रोफोबिक है। तो ये जो आपका पिगमेंट्स होते हैं बेटा, दिस इज दे आर एक्चुअली लोकेटेड हियर, सो दे आर हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब समझ आई बेटे? मैम एक दफा फिर से रिपीट कर दें। हाँ थोड़ा रिपीट करना बेटे, आवाज थोड़ी हल्की हो रही है। मैम एक दफा फिर से अच्छा बोल दें। देखो, अब तुम देखो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, वी नो इट हैज हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड क्या होता है बेटा? इट इज वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक जो टेल्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ लाइक फैटी एसिड चेन्स। दिस एरिया इज वाटर हेटिंग, ठीक है। सो जनरली व्हाट विल हैपन, अब अगर मैं इसको यहाँ पे चलो पेन से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ये जो पार्ट है बेटे, ठीक है, इस ये आपका पूरा फोटो सिस्टम का, ठीक है, ये जो पार्ट है इस पिगमेंट का, दिस होल इज प्रेजेंट इन द हाइड्रोफोबिक एरिया, ठीक है, ये देखो सेंटर में है। हाइड्रोफोबिक के अंदर वही चीज स्टे कर सकती है बेटा जो हाइड्रोफोबिक होगी, ठीक है। अदरवाइज तो वो फॉरन, क्योंकि वाटर वाली कोई हाइड्रोफिलिक चीज उसके अंदर एंटर हो ही नहीं सकती ना। ये यहाँ पे सिर्फ इस वजह से स्टे करिए क्योंकि इसकी देखो इसकी एडजेसेंट साइड हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक है। तो यहाँ पे सिर्फ वही चीज स्टे करेगी। जैसे अगर तुम्हें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद हो बेटा, तो वहां पे मेम्ब्रेन ब्राउन प्रोटीन्स होती थी, इस तरह के प्रोटीन होते थे, ठीक है। वो प्रोटीन वहां पे क्यों एग्जिस्ट कर रहे थे? बिकॉज दे वर मेड अप ऑफ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। So if they are made up of hydrophobic amino acids, only then they can be stay here. तो उसके जो ऊपर वाले एंड्स होते थे, they were hydrophilic, ठीक है। मैं उस नॉर्मल एक प्रोटीन के चैनल की बात बता रही हूँ जो तुमने अगर रिकॉल करो एएस में हमने पढ़ा हुआ है सेल मेम्ब्रेन में। और इसका जो ये पार्ट है, इंटीरियर पार्ट होता है बेटा, ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से बनता है। सो ऑल दिस एरिया इज हाइड्रोफोबिक। दैट्स द रीजन ये जो पिगमेंट्स भी यहाँ पर है बेटे, इसी वजह से है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब समझ आई बात बेटे? यस मैम। चीज हाइड्रोफिलिक होगी ना, वो ऊपर होगी। क्योंकि अगर तुम इमेजिन करो बेटे, ये थाइलाकोइड है, तो थाइलाकोइड किस चीज से सराउंड हुआ हुआ है? उसके इर्द गिर्द स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा इज लिक्विड, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर भी, तो उसमें वाटर भी है, तो हाइड्रोफिलिक चीज इस तरफ फेस करेगी, ठीक है। सो दैट्स द रीजन बेटा हाइड्रोफिलिक हेड्स जो होंगे वो इस तरफ होंगे। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी होंगे, क्योंकि वो सराउंडेड बाय स्ट्रोमा है ऑल अराउंड, ठीक है। बट उसकी मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्चुअली दिस इज द हाइड्रोफोबिक एरिया। अब समझ आई बात बेटे? यस मैम। ठीक है। अच्छा लेट्स गो बैक, और ये चीज हमने डिस्कस कर ली, ओके। अब लेट्स टॉक अबाउट बेटा क्लोरोफिल, हाउ डज इट एब्जॉर्ब द लाइट, ठीक है। सो वी नो दैट पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस व्हिच एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस बेटा, सम पिगमेंट्स विल एब्जॉर्ब मोर कलर्स, ठीक है। अब डिपेंड करता है पिगमेंट टू पिगमेंट, सम पिगमेंट्स कैन एब्जॉर्ब मोर कलर्स और वेवलेंथ। और रिमेंबर बेटा हमने थोड़ी देर पहले यही बात की थी कि लाइट विजिबल हमें होती है बट वेवलेंथ आर नॉट विजिबल। बट ये वेवलेंथ जो है ये दे आर यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो पिगमेंट्स कैन एब्जॉर्ब कलर्स और वेवलेंथ देन अदर्स। सो द कलर्स दे एब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो एनी पिगमेंट दैट विल एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स, अब ये चीज तुमने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, अगर वहां से तुम रिलेट करो।
So anything that absorbs all the colors, beta, it appears black to us. याद है? Yes, ma'am. जहाँ सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे वो ब्लैक शो होंगे, ठीक है। और जो चीज आपको मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ब्लू कलर नजर आ रहा है, इट मीन्स ब्लू कलर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड। सो वट एवर इज रिफ्लेक्टेड वही कलर हमें नजर आ रहा होता है। अब मुझे एक लाल गाड़ी लाल इसलिए नजर आ रही है कि सारे कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं एक्सेप्ट फॉर रेड। तो जो चीज एब्जॉर्ब नहीं होती वो हमें नजर आती है रिफ्लेक्शन के थ्रू, ठीक है। दैट इज व्हाट इज परसीव्ड बाय अस। समझ आई बेटे? Yes, ma'am. तो इसीलिए जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बात कर रहे हैं तो ये कलर पूरे के पूरे ब्लू एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू सी दिस। पूरा का पूरा रेड पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू सी इट। वट एवर वी आर एबल टू सी इट इज इन दिस रेंज। और जनरली, ठीक है, ग्रीन कलर हमें ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। अब क्लियर हुआ बेटे? Yes, ma'am. ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है आपके उसमें पूछा जाता है, तो ठीक है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अभी बेटा हम सिर्फ जनरली बात कर रहे हैं कि व्हाट डज लाइट एनर्जी डू बेसिकली, ठीक है। इसका रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में। So light energy beta, we know it is needed for light dependent stage, ठीक है। But light energy basically किस चीज के लिए यूज हो रही है? It is used for splitting water. Splitting of water is known as photolysis या photolysis. Photo का मतलब light और lysis का मतलब breakdown. So water को बेटा हम किन दो चीजों में break down करेंगे यहाँ पे? If this is your water molecule, किन चीजों में break down हो रहा है इसका? Ma'am, protons में, electrons में. ठीक है। जो प्रोटॉन है, जो इसके जो पॉजिटिव चार्जेस है वो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। और जो नेगेटिव जो ऑक्सीजन होगा बेटा, ऑक्सीजन जनरली क्या होगा कि इफ लेट्स से कि टू वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सो टू ऑक्सीजन एटम्स विल कंबाइन टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन बेटा वी नो इज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब इस केस में तो वेस्ट प्रोडक्ट है, बट डेफिनेटली वो रेस्पिरेशन के लिए आगे जाके काम आ जाएगा। बट दिस हाइड्रोजन विल एक्चुअली बी यूज्ड इन द लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज, ठीक है। सो पहला रिएक्शन जनरली सिंपली जस्ट राइट नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे लाइट एनर्जी करती क्या है। तो इट इज नेसेसरी फॉर फोटोलिसिस, इस प्रोसेस के लिए बेटा हमें जरूरी है लाइट एनर्जी, ठीक है। देन लाइट एनर्जी इज आल्सो नीडेड टू प्रोवाइड केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो लाइट एनर्जी के दो फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। एक तो फोटोलिसिस कर रही है, जो कि डेफिनेटली बेटा जब भी अभी हम आगे फोटो सिस्टम 2 की बात करेंगे वहां पर हो रहा है, ठीक है। सो दिस विल हैपन। और एटीपी, तो दो चीजें यहाँ पे बन रही हैं। एक तो ये प्रोटॉन बन गया, ठीक है, जब ये ब्रेक हो गया, और उसके साथ साथ एटीपी। तो ये दो चीजें लाइट एनर्जी की वजह से बन रही हैं, ठीक है। नाउ दीज टू विल देन बी यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट इन द लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। तो लाइट डिपेंडेंट स्टेज में सिर्फ ये चीजें बनी, मगर ये यूज नहीं होंगी। इनका यूज कहां पर होगा आगे जाके बेटे? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में। इज दिस पार्ट क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, so we just talked about बेटे कि we have two type of pigments. We have primary pigments and we have accessory pigments. और प्राइमरी पिगमेंट्स के क्या नाम थे बेटे? Chlorophyll A and chlorophyll B. गुड, ठीक है। और एसेसरी पिगमेंट्स जो हैं उनके क्या नाम थे? Carotenoids and xanthophyll. ज़ैंथोफिल, ठीक है। ज़ैंथोफिल येलो कलर देते हैं, कैरोटिनॉइड्स में बेसिकली बीटा कैरोटीन जो है वो ऑरेंज कलर दे रहा होता है। तो अच्छा, अब कैरोटिनॉइड्स एक्चुअली एसेसरी हैं। पिगमेंट्स बेटा अरेंज कैसे होते हैं? दे आर अरेंज्ड इन लाइट हार्वेस्टिंग क्लस्टर्स। हार्वेस्ट बेसिकली सिंपली इफ वी गो बैक टू दिस डायग्राम, दिस वन, ठीक है। सो इफ यू लुक एट इट बेटा, दे आर हार्वेस्टिंग लाइट। हार्वेस्टिंग मतलब इसको कलेक्ट करते जा रहे हैं लाइट को। एसेसरी पिगमेंट इसने कलेक्ट किया, यहाँ पे लेके गया, इधर लेके गया, इधर लेके गया, इवेंचुअली दे आर टेकिंग इट टू द प्राइमरी पिगमेंट, ठीक है। तो कलेक्ट कर रहे होते हैं लाइट को। सो हम इसके लिए क्या यहाँ पे लफ्ज यूज करें कि दे आर अरेंज्ड इन लाइट हार्वेस्टिंग क्लस्टर्स कॉल्ड फोटो सिस्टम्स। तो इन क्लस्टर्स को फोटो सिस्टम्स बोलते हैं। सो जनरली अभी अगर हम ये वाली डायग्राम देख रहे थे बेटे, तो दिस इज एक्चुअली, ये पूरा एक क्लस्टर आपको दिखा है, तो दिस इज वन फोटो सिस्टम, ठीक है बेटे। सो दिस इज हाउ दे विल कलेक्ट द लाइट। क्लियर हो बेटे? Yes, ma'am. अच्छा, अब फोटो सिस्टम के अंदर बेटा देयर आर नॉट वन, अभी हमने डायग्राम में भी देखा, यू देयर आर सेवरल हंड्रेड एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है, एंड दे आर सराउंडिंग अ प्राइमरी पिगमेंट. सो वी जस्ट सॉ दैट इन द डायग्राम आल्सो. The energy of light is absorbed by different pigments, is passed to the primary pigment. The primary pigments then, beta, we just talked about, there are two forms of chlorophyll.
और these pigments, हम pigments की जब बात करते हैं, because they are absorbing light basically बेटे, so they are known as reaction centers. ठीक है, so जो reactions हो रही हैं आगे basically they are happening in these centers, which are the pigments. So role of light energy and role of pigments, ये चीज समझ आ गई बेटे? जी बेटे? Ma'am, could you say that again? नहीं, I'm asking क्योंकि is it clear till now? अभी तक हमने जो पढ़ा Yes. light absorption spectrum और light energy का, ठीक है? Yes. Okay, now let's talk about them one by one. ठीक है? अच्छा, इनफैक्ट इससे पहले ना मैं तुम्हें लाइट एब्जॉर्प्शन की एक वीडियो दिखाती हूँ, ताकि विजुअल तुम देखोगे ना तो तुम्हें और एक अच्छा सा क्लियर होगा. सो जस्ट वेट बेटा, मैं वो वीडियो लगा दूँ पहले. In the chloroplast, the light and dark reactions of photosynthesis occur. The thylakoid discs, which are flattened sacs, contain light-capturing pigments and proteins that carry out the light reactions, which require light to work. In the liquid stroma, the dark reactions occur. They don't have to happen at night, they just don't require light to function. In the membranes of the thylakoid discs are tiny pigment molecules like chlorophyll, which capture energy from light. Chlorophyll A is the most common type, but there's also chlorophyll B. Let's look at how they absorb, reflect, and transmit light. Chlorophyll A absorbs and uses mostly blue light and a little orange and violet. It reflects all of the green light and some of the yellow light. Chlorophyll B absorbs mostly violet light and red light, but also reflects greens and yellows. Because of this, plants with lots of chlorophyll look green, but plants would be wasteful if they had no way to capture some of that green light, and it turns out they do. Carotenoids absorb colors that chlorophyll cannot, so that the plants can capture more energy from light. Notice that the carotenoids have the ability to absorb some of the green light, and they usually have a yellow, orange, red, or brown color. We can see these beautiful colors in the fall when the chlorophyll breaks down and the carotenoids are left behind. To really understand how chlorophyll works and how photosynthesis harnesses the energy from light, we need to know a little bit about light and waves. The peak of the wave is called the crest, and the distance from crest to crest is called the wavelength. The number of waves that pass a certain point per second is called the frequency. Low-frequency waves move slow and tend to be larger, and high-frequency waves are fast and high energy with short wavelengths. The spectrum of electromagnetic radiation, which includes visible light, has slow, big radio waves on one end and high-energy, high-frequency gamma waves at the other end. Visible light makes up only a tiny portion of the spectrum, but it includes all of the colors we can see: red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Or Roy G. Biv. The light towards the red end have lower energy, bigger wavelengths, and a lower frequency. And light toward the violet end has high energy, small wavelengths, and high frequency. When light strikes an electron, the electrons get excited and jump to a higher energy level. Then that excited electron can either be captured by a molecule that's part of a chemical reaction, like in the light reaction in photosynthesis, or the electron will fall down to a lower energy level. When an electron falls to a lower energy level, it emits a photon of light. In this case, the electron has fallen to its ground state, the lowest energy level. Chlorophyll will emit a red light when it falls to a lower energy level. Thanks for watching this episode of Teacher's Pet. Start. अच्छा बेटा, अब लाइट डिपेंडेंट स्टेट कहाँ पे कंडक्ट हो रही थी बेटा? इट वाज हैपनिंग इन द थाइलाकोइड. ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है लाइट डिपेंडेंट स्टेट. सो द नेम टेल्स यू बेटा, इट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बेसिकली. ठीक है. अच्छा, अब लाइट डिपेंडेंट स्टेट में कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? ठीक है, सो इट रिक्वायर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आल्सो हैपेंस, व्हिच इज फोटोलिसिस. ठीक है, because of that beta we get protons and we get electrons also, and synthesis of ATP. So light dependent reaction में आपके पास दो चीजें हो रही हैं, एक तो photolysis of water, ठीक है, प्लस बेटे आपको साथ साथ ATP मिल रहा है. तो ये दो आपके एंड प्रोडक्ट्स हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के. अच्छा, अब जब हम बेटा इसकी बात करते हैं तो जनरली यहाँ पे वी हैव टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम्स, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1. तो जनरली क्या होता है कि सारे रिएक्शंस पहले फोटो सिस्टम 2 के अंदर होते हैं. तो दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स. ठीक है, देन कम्स फोटो सिस्टम 1. इनका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट भी ऐसे ही होता है, पहले फोटो सिस्टम 2 होता है, उसके आगे फोटो सिस्टम 1 होता है. तो अभी हम आगे की डायग्राम्स में देखेंगे. अच्छा, अब जनरली बेटा क्या हो रहा है, द हाइड्रोजन आयंस
बिकॉज वाटर हैज बीन ब्रोकन. ठीक है, अभी तो हम एक बार में जनरलाइज बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. So since the water beta gets like split into hydrogen protons, ठीक है, oxygen. So hydrogen ions, the ones better that released, they combine with the carrier molecule NADP. ठीक है, अब इसको उससे मत कंफ्यूज करना. जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था वहां हमने खाली NAD पढ़ा था. ठीक है, इसको तुम सिर्फ याद करने के लिए P ध्यान में रखो कि P आ रहा है क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं. ठीक है, बट यहाँ पे जो कैरियर मॉलिक्यूल है वो NADP है. कैरियर मॉलिक्यूल रिएक्शन में कोई काम नहीं करे. इट इज सिंपली बेटा कलेक्टिंग दिस हाइड्रोजन. इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेगा. इट विल बी कॉल्ड एज रिड्यूस NADP. और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट एज NADPH. ठीक है, या तो ऐसे लिखो या तुम लिख रही हो खाली तो फिर रिड्यूस NADP. अगर रिड्यूस NADP लिख रही हो तो उसके साथ H मत लगाना. ठीक है, सो इधर राइट दिस वे और दैट वे. और यहाँ H लगा हुआ है तो इट मींस बेटा इट इज रिड्यूस. और रिडक्शन की डेफिनेशन अगर तुम्हें याद हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. सो बेसिकली वो हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैच हो गया. ठीक है, सो द ATP and this reduced NADP, this is actually beta what will be used in the light independent reaction. So photolysis की वजह से जो हाइड्रोजन बना है बेटा, it is then carried by this NADP, which is a carrier molecule, and these are the two end products that we are getting from light dependent reaction, ATP and reduced NADP. But they will not be used in the light dependent stage. They will move on to the stroma और वहां जाके भी light independent में यूज होंगे. ये चीज क्लियर है बेटे? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा. अब now बेटा we'll talk about photophosphorylation. Phosphorylation means बेटा like addition of phosphate group. Photo हम क्यों कह रहे हैं? Because this is actually happening in the presence of light. So photophosphorylation of ADP to ATP, क्योंकि definitely बेटा ATP यहाँ पे बन रहा है. This process can be two ways. It can be cyclic, it can be non-cyclic. ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की. ठीक है, तो ये आपके फोटो फॉस्फोराइलेशन दो तरीके से हो सकती है, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन वन और बोथ टाइप्स ऑफ द फोटो सिस्टम. सो सिर्फ इसको अभी अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा देख लो डायग्राम को, फिर विल टॉक अबाउट इन डिटेल. अच्छा, अब फोटो सिस्टम 1 को बेटा अगर तुम कंपेयर करो तो लाइट energy has been absorbed by the accessory pigments. ठीक है, it is then taken up by this, ये आपका pigment है which is chlorophyll. ठीक है, so generally क्या होता है बेटा, जब light absorb करेंगे तो यहाँ पे ये absorb करने की वजह से this electron actually goes to a higher energy level. ठीक है, तो अगर तुम उसको याद करो, जैसे केमिस्ट्री में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी वगैरह अगर तुमने देखा हो, अगर ये न्यूक्लियस है और ये मेरे पास एक फर्स्ट शेल है एंड दिस एज द सेकंड शेल है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा एनर्जी गेन करेगा तो इट विल गेन दिस मच, इट विल गो टू द नेक्स्ट शेल, ऊपर के शेल में चला जाएगा, बिकॉज इट हैज गेन एनर्जी. जब ये एनर्जी गेन कर लेते हैं तो व्हाट हैपेंस बेटा, इस इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे खाली हो जाती है. दैट हैज टू बी फिल्ड आल्सो. सो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली गोज अप. अब इस इलेक्ट्रॉन को बेटा या तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैच कर लेगा, ठीक है, या इट विल कम बैक टू द सिस्टम. तो दो तरीके हो सकते हैं इसके साथ. अभी सिर्फ जनरल समझ लो. और ये बेसिकली जो आपको यहाँ पे दिखाया ना, ये आपको दिखाया उन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स. ठीक है, ये हमारे अभी कोर्स में बेसिकली इनके नाम याद करना रिक्वायर्ड नहीं है. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि दीज आर लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स. वो वन बाय वन एक एक कैरियर से होते होते, ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन विल, अब जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर चला गया, इस इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई, तो ये जगह पॉजिटिवली चार्ज है कंपैरेटिवली. ठीक है, सो क्या होगा एक्चुअली, मैंने आपसे कहा था फोटो सिस्टम 2 पहले आता है, तो फोटो सिस्टम 2 समझो यहाँ पे लगा हुआ होगा. फोटो सिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इट विल एक्चुअली थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स इट विल मूव back to this area now. वो इस जगह को फिल कर लेगा. So this generally happens in photo system 1. ये चीज क्लियर हुई है बेटे? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, फोटो सिस्टम 2 के अंदर क्या होता है? सिमिलरली बेटा लाइट रेज आई, एसिस्ट्री पिगमेंट ने एब्जॉर्ब की. ठीक है, दे आर अगेन बेटा एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल. सेम थिंग विल हैपन, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बेटा जंप टू द नेक्स्ट शेल. ठीक है, और वहां पे जाके भी बेसिकली क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे जाके, क्योंकि सेकंड वाली जो है फिर दे कैन मूव ऑन टू द फर्स्ट वन. अब सारी डिटेल्स पर हम इसके साथ पढ़ते हैं. तो फोटोलिसिस याद रखना बेटा, फोटो सिस्टम 2 के अंदर ज्यादा रिएक्शंस होते हैं. तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही थी, वाटर ब्रेकडाउन बाय लाइट एनर्जी, इट वाज टेकिंग प्लेस इन फोटो सिस्टम 2. फोटो सिस्टम 1 में फोटोलिसिस नहीं हो रहा. फोटो सिस्टम 1 में सिर्फ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ऊपर चला गया. ठीक है, बट फोटो सिस्टम 2 के अंदर फोटोलिसिस हो रही है, प्लस वी आर गेटिंग दिस हाइड्रोजन आल्सो, which will then be better used to reduce NADP into NADPH.
ठीक है, तो अभी फॉर नाउ सिर्फ ये समझ लो और नेक्स्ट फिर हम आगे आके डिटेल पढ़ें। बेसिक समझ आ गई है बेटे इसकी? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा लेट्स नाउ टॉक अबाउट देम, बिकॉज अभी हमने कहा बेटे आपकी फोटोफॉस्फोराइलेशन दो किस्म की है। सो इधर इट इज ईदर साइक्लिक और इधर इट इज ईदर नॉन साइक्लिक। साइक्लिक जो होता है बेटा इट ओनली हैपेंस इन फोटो सिस्टम 1। इट मींस जहां हम पीछे बात करते हैं यहाँ पे इस जगह पे फोटो सिस्टम 1 होगा खाली। ठीक है, और फोटो सिस्टम 2 यहाँ पर हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 के अंदर नॉन साइक्लिक होगा। सो साइक्लिक ओनली हैपेंस इन फोटो सिस्टम 1। ओके, अब व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोसेस? Light is absorbed by the photosystem 1. So we just saw that in the diagram. ठीक है, अब अगेन पहले हम ये वाली डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं बेटे, और अगर तुम यहाँ पे सीक्वेंस देख लो बेटे, सो सी बेटे फोटो सिस्टम 2 पहले है, फिर आगे जाके फोटो सिस्टम 1। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे आर अरेंज्ड, बट अब एक उनका नेम ऐसे कर दिया है कि ठीक है, बट 2 में वर्किंग पहले होती है फिर 1 में हो रही है। सो लेट्स सी दिस वन। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द फोटो सिस्टम 1। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 में बेटा क्या क्या था? एसेसरी पिगमेंट से they absorb the light, they take that light to chlorophyll. अब वो वाली जो light energy that is passed to the primary pigment which is chlorophyll. अब जब chlorophyll ने light energy बेटा absorb कर ली, so what will happen? The electron will gain energy and it becomes so excited, ठीक है, that it goes to a higher energy level. We saw this one बेटे, ठीक है, और वो इतना हाई एनर्जी ले लेता है कि इट इज ऑल्सो एमिटेड फ्रॉम द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर से ही निकल जाता है, इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं वो शेल से बाहर निकल गया। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो एक्टिवेशन। ये लाइन समझ आई बेटे? Yes, ma'am. लाइट एनर्जी गेन की, क्लोरोफिल पिगमेंट में जो आपके वो है इलेक्ट्रॉन्स, दे बिकम सो एक्साइटेड दैट दे आर एमिटेड फ्रॉम द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो प्रोसेस इज नोन एज फोटो एक्टिवेशन। अच्छा, अब वो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो गया बेटा, इंस्टेड ऑफ फॉलिंग बैक, वो वापस नहीं आता सिस्टम के अंदर, इंस्टेड ऑफ फॉलिंग बैक, ठीक है, एंड लूजिंग इट्स एनर्जी, क्योंकि अगर बेटा अगर वैसे मैंने पिछली डायग्राम में अभी ये हमने किया था, अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा ये वापस आता, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, ये लो, अगर ये वापस आता ना अपने इस शेल के अंदर, तो इट वुड हैव लाइक एमिटेड सम लाइट, उस लाइट के थ्रू हमें पता चलता है कि मतलब वो वापस अपने शेल में आ गया। बट इस केस में बेटा फोटो सिस्टम 1 के अंदर व्हाट इज हैपनिंग बेटा, इट इज नॉट कमिंग बैक इनटू द शेल, वापस नहीं आ रहा। So what is happening to it? Instead of falling back to the photosystem and losing its energy as thermal energy, ठीक है, थर्मल एनर्जी कि या तो वहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी या फ्लोरेसेंस। तो अगेन जब ये एनर्जी बेटा अपनी लूज करते हैं, नीचे वापस दोबारा आते हैं, तो वो लाइट एक ब्राइट लाइट शो होती है। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो हीट एनर्जी रिलीज होगी या फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये चीज तो हुई नहीं है। what happens, the excited electron is captured by an electron acceptor. This is what happens बेटे। तो instead of falling back to the shell, उसे electron acceptor कैच कर लेता है। ठीक है, and what does it do then? Electron acceptor क्या करते हैं? It passes it back to the chlorophyll molecule via a chain of electron carriers. So वापस उसमें जो कैरियर्स होंगे बेटा, इसी तरह ये वाले कैरियर्स हैं, तो इट एक्चुअली गोज बैक देयर और वापस वो सिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है, मगर ये अपने शेल में वापस नहीं आता। सो फोटो सिस्टम 1 में ये हो रहा है। एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। व्हाट इज हैपनिंग? लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द फोटो सिस्टम 1, it is passed to the primary pigment. ठीक है, so the like electron in the chlorophyll gains so much energy it leaves. ठीक है, and if it goes out better, it doesn't come back into the system. ठीक है, what happens? It is captured by an electron acceptor. ठीक है, and then passed back to the chlorophyll molecule via a chain of electron carriers. ये चीज क्लियर है बेटे? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा अब इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है, like enough energy is released, क्योंकि एनर्जी तो डेफिनेटली रिलीज हुई है, इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। So this energy is released to synthesize ATP from ADP and an inorganic phosphate. ठीक है, so ATP is also produced in this process. और process known as chemiosmosis, इसके भी हम आगे बात करेंगे। तो जनरली बेटा what happens कि यहाँ पे तुम देखो कि एक तो इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन, क्योंकि सेल के अंदर भी ऑलरेडी है, या फोटो सिस्टम 2 की तरफ से जो हाइड्रोजन आ रही है, ठीक है, लाइक ये प्रोटॉन पंप के थ्रू इट गोज आउट। ठीक है, एटीपी सिंथेस की वजह से, और एडीपी कन्वर्ट्स इनटू एटीपी। ये एटीपी पे बाहर यूज हो जाएगी स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, तो अभी हम आगे और इसकी सारी डिटेल पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ क्या बात हो रही है? एटीपी इज रिलीज्ड। ठीक है, एंड द प्रोसेस नोन एज केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस क्या है कि एटीपी सिंथेस के थ्रू एटीपी बन रही है। ठीक है, बट देन दिस हाइड्रोजन, दिस प्रोटॉन आल्सो गोज आउट ऑफ द सेल।
and this ATP is then used in the light independent reactions. तो अभी तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का तरीका पता चल गया बेटे? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर बेसिकली बेटे जब एटीपी बन रही है इट इज फॉर्म्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है, और उसका रीजन क्या, इट इज नॉट बीइंग रिड्यूस टू NADP. रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा बेटा? क्योंकि यहाँ पे फोटोलिसिस हुई नहीं है. अगर वाटर होता और वो ब्रेक डाउन होता तो हमारे पास प्रोटॉन आता, तो प्रोटॉन तो था नहीं, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे रिड्यूस NADP नहीं बन रहा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बन रहा. ये चीजें बनती है फोटोसिस्टम 2 में, बिकॉज वहां पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है, ठीक है. अब ये प्रोसेसेस क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, सो द ओनली प्रोडक्ट यू आर गेटिंग इज अ स्मॉल, यू आर गेटिंग इज ATP ओनली, ठीक है, वो भी बहुत कम अमाउंट में. क्लियर हो गई बेटी ये चीज? Yes, ma'am. अच्छा अब इसको जरा हम कंपेयर करेंगे नॉन साइक्लिक से, ठीक है. अब नॉन साइक्लिक बेसिकली कहां पर हो रही है बेटा? फोटो सिस्टम 2 के अंदर, ठीक है, मगर फिर फोटो सिस्टम 2 के बाद इट गोज टू फोटो सिस्टम 1, तो फिर जो दोनों में होती है, बट इट स्टार्ट्स विद फोटो सिस्टम 2 एंड देन इट गोज टू फोटो सिस्टम 1. ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस पार्ट. सो इट इन्वॉल्व्स बोथ द सिस्टम्स. सो जनरली बेटा जो उसकी इलेक्ट्रॉन फ्लो जिस पोजीशन में होता है वी कॉल इट एज अ Z स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो. अभी we'll just look at the chart also उसका, ठीक है. So it happens in both the systems, but definitely beta it starts with photosystem 2. So this is photosystem 2, ठीक है, and then through a series of processes it goes to photosystem 1, ठीक है. So let's see beta how it happens. So we know beta दोनों photosystem में they are absorbing light. लाइट देखो यहाँ पे भी SS3 पिगमेंट्स है, तो फोटोसिस्टम 2 भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोसिस्टम 1 भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और दोनों के अंदर ही बेटा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे. So since light is being absorbed, excited electrons are emitted from primary pigments of both reaction centers. तो ये स्टेप तो बेटा दोनों में सेम है. अब what is happening, photosystem 1 में हमने कहा था कि बेटा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कैच कर लेते हैं. अच्छा अब these electrons are absorbed by the electron acceptors, then they are passed along the chain of electron carriers, leaving the photosystems positively charged. Why we are saying positively charged बेटा? Because electrons का charge अपना negative होता है, अगर वो system से निकल जाएंगे तो यहाँ पे generally positive charge हो जाएगा. So let's understand it like this. ये बेटा देखो अगर यहाँ से electron release हो रहा है, ठीक है, and we know that it leaves the system. So generally what happens बेटा, these are the electron carriers. ये जो electron carriers हैं बेटा, these are the electron acceptors. So अब ये electron यहाँ पे चला जाएगा. So this is one carrier, this is another carrier, ठीक है. अब इनके नाम अभी हमारे syllabus में required नहीं है. So we just know that this electron passes through a series of electron carriers, and then अब see बेटा photosystem 2 से जो electron release हुआ, it is actually then taken to photosystem 1. क्योंकि फोटोसिस्टम 1 में भी जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकला था बेटा, ये जगह पॉजिटिव चार्ज हो गई थी, ये जगह खाली थी, इस जगह पे ये वाला इलेक्ट्रॉन आके इसने जगह ले ली. अब बार बार ये लाइट एब्जॉर्ब करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके निकलता जाएगा, बट फोटोसिस्टम 2 से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके वापस इधर लग जाएगा. ये चीज समझ आई बेटे? Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा अब प्राइमरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिस्टम 1 एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 2. अब ये याद रखना बेटे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ रिलीज हुए, बट देन थ्रू दीज प्रोटीन कैरियर्स, so electron acceptors, they are actually moving to photosystem 1. So then its primary pigment which is chlorophyll, it receives replacement electrons. अभी हम बेसिकली बात करें अब इसकी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन से बेटा यहाँ जाके लग गया, पॉजिटिव चार्ज तो ये जगह भी हो गई ना. अब इसको इलेक्ट्रॉन किस तरह मिल रहा है, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली बेटा हैपनिंग फ्रॉम फोटोलिसिस. सो फोटोलिसिस के अंदर बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग बेटे, बिकॉज वी नो बेटा वाटर स्प्लिटिंग इनटू प्रोटॉन, ठीक है, और अब आपको पता है कि हाइड्रोजन बेटा जब बनता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बनते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास देयर इज ओनली, इफ यू रिमेंबर बेटा, उसका एटॉमिक नंबर 1 है. एटॉमिक 1 का मतलब है इट हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो एट द सेम टाइम बेटा सेम प्रोटॉन भी तो बन रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन के लिए हम H पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है. बट सिंस वाटर मॉलिक्यूल है बेटा H2 है, तो जनरली बेटा वी गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड वी गेट 2 प्रोटॉन्स. ये बात समझ आई बेटे? Yes, तो ma'am. ये तो बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री है, ठीक है. ओके देन, सो व्हाट इज हैपनिंग, where were we? The primary pigment receives replacement electrons from the splitting photolysis of water, ठीक है. अब ये जो वाटर ब्रेकडाउन हुआ था, वाटर ब्रेकडाउन होने की वजह से बेटा क्योंकि हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स बन रहे थे, तो वही इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली है जो यहाँ पर आ रहे हैं. तो यहाँ पे फोटोलिसिस हो रही है,
ठीक है, फोटोलिसिस के बाद आपके पास जो एंड प्रोडक्ट्स आ रही है, यू आर गेटिंग ऑक्सीजन, ठीक है, यू आर गेटिंग, और हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों है, प्रोटॉन स्टेज इनसाइड बट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली गोज एंड अटैचेस हियर, वही इलेक्ट्रॉन पे लाइट गेन करके becomes excited and then leaves, and then it is caught by the electron carriers and which is then taken to this photosystem 1. series of events समझ आ गए बेटे इसमें? Yes, ma'am. So as in cyclic phosphorylation, ATP इस प्रोसेस में भी बेटा ATP सिंथेसिस हो रही है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, उस ATP के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स भी बन रहे हैं, which will then be taken up by the NADP और NADP will be reduced. ठीक है, ठीक है, तो एक दफा हम इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं. तो ये आपका नॉन साइक्लिक प्रोसेस है विच इज टेकिंग इन बोथ द फोटो सिस्टम्स. इट स्टार्ट्स हियर, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है, देन इट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स बिकम सो एक्साइटेड दैट दे लीव, ठीक है, व्हेन दे लीव, ठीक है, दे डू नॉट कम बैक टू द सिस्टम बट दे आर कॉट बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ठीक है, एंड थ्रू गोइंग बाय वन दे आर टेकन टू द फोटो सिस्टम 1, ठीक है, और फोटो सिस्टम 1 के अंदर भी अगेन इट विल बिकम एक्साइटेड एंड देन दिस इलेक्ट्रॉन विल अगेन बेटा विल बी कॉट बाय एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है, और उसके बाद फिर बेटा देन अगेन इट विल बी यूज्ड. बट अब दूसरा फोटो सिस्टम 2 के अंदर क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज वाज कवर्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, इट इज कमिंग बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर. सो वहां पे जो हाइड्रोजन आपका वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स स्टे इन द सिस्टम, इलेक्ट्रॉन्स कम हियर, ठीक है, एंड द सेम सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपन. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब उसके बाद अब क्योंकि एटीपी जनरेशन हो रही है, तो कैसे हो रही है एटीपी जनरेशन? सो यहाँ पे बेटा अगेन लाइक प्रोटॉन पंप्स लगे हुए हैं, दिस कंटेन्स एन एंजाइम एटीपी सिंथेज. सो जनरली व्हाट हैपेंस, दिस हाइड्रोजन बेटा हैज टू लीव आल्सो, ठीक है, अब बिकॉज इट इज लीविंग नाउ, तो दिस इज कन्वर्टिंग दिस एटीपी इनटू एटीपी. सो हाइड्रोजन भी बाहर चला गया स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, और एटीपी बन गया. और ये जो हाइड्रोजन है बेटे, ठीक है, अब जैसे ये इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ, तो डेफिनेटली बेटा इट वुड बी हियर आल्सो बिकॉज ये पूरी मेम्ब्रेन है. So this hydrogen will then be taken up by this NADP, which is a carrier molecule, ठीक है, और it will become reduced NADPH. अब समझ आई बेटे प्रोसेस इसका? Yes, ma'am. ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. साइक्लिक कहाँ पर हो रहा था? सिर्फ फोटो सिस्टम 1 के अंदर हो रहा था. इसमें तुम्हारा सिर्फ एक एंड प्रोडक्ट बन रहा था, दैट वाज ATP, ठीक है, देयर वाज नो NADP, ठीक है, क्योंकि वहां पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई नहीं है. बट यहाँ पे नॉन साइक्लिक आपका होता है फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, और एंड प्रोडक्ट्स बेटा क्या मिल रहे हैं यहाँ पे हमारे ATP, ठीक है, और हाइड्रोजन जो रिलीज हो रही है, इट इज कंबाइनिंग विद द कैरियर मॉलिक्यूल एंड कन्वर्टिंग इनटू रिड्यूस्ड NADPH. These two products will now move on to the light independent stage. क्लियर हो गया बेटा ये प्रोसेस आपको? Yes, ma'am. कोई सवाल है बीच में पूछने के लिए? नहीं, ma'am. चलो ठीक है, लेट्स मूव नाउ. ठीक है, अच्छा अब फोटोलिसिस को भी, ठीक है, सो एक दफा और देख लेते हैं कि बेसिकली बेटे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बन कैसे रहे. सो फोटोलिसिस वी डिस्कस बेटे, इट मींस स्प्लिटिंग यूजिंग लाइट एनर्जी. इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, वी कॉल इट डिसइंटीग्रेशन आल्सो. ठीक है, सो हाउ इज दिस प्रोसेस बीइंग टेकिंग प्लेस? इट इज ड्रिवन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब थ्रू द क्लोरोफिल. ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो यू सी बेटे वाटर ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने आपको दिखा दिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन, ठीक है, एंड प्लस क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूरा आपको बेसिकली दिखाया है. मैंने जनरल अगर तुम बुक की देखो इक्वेशन, तो बुक में उन्होंने हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है, ठीक है, बट अगर डेफिनेटली अगर हम फुल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिखाना विच इज बीइंग रिलीज्ड एज अ गैस, सो उस केस में यहाँ पे इसलिए उन्होंने इसको 4 करके दिखा दिया. ठीक है, okay, so what is happening बेटे, light is being absorbed, water is broken into hydrogen, ATP and oxygen. Oxygen is released as a waste byproduct, then ATP or hydrogen they move to the next stage. ठीक है बेटे, यहाँ तक Yes, क्लियर है? ma'am. ओके, और वही सेम थिंग अब यहाँ उन्होंने बुक की एग्जाम आपको इक्वेशन दी थी जो एग्जैक्टली आपके बुक में. तो अब और ये बेसिकली फोटोलिसिस हो कैसे रही है? सो देयर इज जनरली बेटा वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम आल्सो. देन अगेन इसका नाम भी, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है हमारे सिलेबस में, सो सिंपली जस्ट आप आंसर में भी आप ये लिखोगी वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम. सो और दिस वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम इज फाउंड इन द फोटो सिस्टम 2. ठीक है, इट catalyzes the breakdown of water, and yes, oxygen is a waste product, hydrogen combines with NADP to convert into reduced NADP.
और here बेटे they have shown you the equation. ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो आपके फोटो सिस्टम 1 से रिलीज हुआ था, रिमेंबर वहां से भी तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे. इफ यू गो बैक टू द डायग्राम सी बेटे, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा रहा था. ठीक है, इट वाज कॉट बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस ये हाइड्रोजन. ठीक है, दे आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड टू मेक रिड्यूस एनएडीपी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस NADP. दिस मेक्स रिड्यूस्ड NADP. ठीक है, देन इट मूव्स ऑन टू द लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज. और अब इसकी वजह से फिर कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन होगी, जो कि एक्चुअल टास्क है फोटोसिंथेसिस का. सो लाइट डिपेंडेंट स्टेज क्लियर हो गया बेटे? Yes, ma'am. ठीक है, ये है बेटा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो उन्होंने कहा था आपसे कि जी स्कीम. सो जनरली ठीक है, अब हमने जैसे नॉन साइक्लिक रिएक्शन के लिए पढ़ा था कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम फोटोसिस्टम 2. ठीक है, एंड देन कम्स फोटोसिस्टम 1. सो सी बेटा, अगर यहाँ प्राइमरी पिगमेंट है फोटोसिस्टम 2 है, सो राइट नाउ बेटा दे हैव शोन लाइट हियर. लाइट इज बीइंग एब्जॉर्ब. उस लाइट की वजह से क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन सो मच एनर्जी दैट इट गोज अप. सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको ऊपर दिख रहे हैं, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से आए हैं? रिमेंबर वाटर की फोटोलिसिस हुई थी. ठीक है, इट स्प्लिट अप. तो अब वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन बेटे हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. ठीक है, तो अगर आपके पास अभी यहाँ पे 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये जो हाइड्रोजन है इट विल स्टे इन द सिस्टम, मगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी एक्चुअली यूज्ड एंड दे विल गो, दे विल सी द डायरेक्शन, देखो दे विल पास टू द प्राइमरी पिगमेंट. ठीक है, और ऑक्सीजन जो है इट विल बी रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, सो दोबारा समझ लो फोटोलिसिस कैसे हो रही है. वाटर आया, इट स्प्लिट्स. ठीक है, इन लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम into hydrogen, proton and electron. Proton stays in the system, electron, ठीक है, it goes up. ठीक है, and then what happens during this process, अब क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन नीचे तो आता है but it does not fall back. Remember हमने कहा था वो सिस्टम में वापस नहीं आता. It goes down but it is caught by the electron transport carriers. अब जब वो कैरियर्स उसको कैच करते हैं बेटे, तो वी नो कि एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो सकती है? इधर वो थर्मल एनर्जी रिलीज होगी, या वो लाइट एनर्जी या फ्लोरेसेंट रिलीज होगी. So since that energy is released, this is how this ATP is converted into ATP. So ATP की production इस तरह हो रही है. Are you getting it बेटे? Yes, ma'am. ठीक है, so ये आपकी एनर्जी प्रोडक्शन यहाँ हुई. अब ठीक है, अब what happens बेटे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो this area has become positively charged now. इसमें दोबारा इलेक्ट्रॉन किस वजह से आएगा? दोबारा क्योंकि वाटर तो is constantly entering in, बार बार फोटोलिसिस होगी, you will get the electron there. मगर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ बेटा थ्रू द इलेक्ट्रॉन दोस चेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इट गोज टू द फोटोसिस्टम 1. देन अगेन फोटोसिस्टम 1 भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. द सेम इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी, इट विल गो अप. ठीक है, एंड देन अगेन बेटे व्हाट विल हैपन, इट विल देन बी अगेन कॉट बाय अनदर कैरियर प्रोटीन. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा बेटा, इट विल कंबाइन विद NADP 2H and it will give you reduced NADP. So these are the 2 end products that you are getting then. ठीक है, और सिमिलरली जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, वही इलेक्ट्रॉन ने गेन किया. ठीक है, सो देयर विल बी कैरियर्स हियर आल्सो. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने गेन कर लिया एंड इट कम्स बैक. सो फोटोसिस्टम 1 का अगर तुम रिकॉल करो, फोटोसिस्टम 1 के अंदर बेसिकली क्या हो रहा था, इट गोज अप, इट डजंट फॉल बैक, बट वहीं के वहीं उसको इलेक्ट्रॉन कैरियर कैच करके वापस से सिस्टम में भी ले आते हैं. तो फोटोसिस्टम 1 में 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. फोटोसिस्टम 2 से भी आ सकते हैं, और वही जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से रिलीज हुआ है, ठीक है, it can also come back, but it is caught by the electron acceptor first, and then the electron acceptor shifts it to this chlorophyll. तो ये ऑरेंज लाइन आपको जो ट्रायंगल दिखाया इन्होंने फोटोसिस्टम 1 के लिए दिखा दिया, और जो हम ब्लू फॉलो करें बेटा, ये ब्लू वाला आपका फोटोसिस्टम 2 के लिए, बेसिकली जो आपका नॉन साइक्लिक प्रोसेस है. और जो साइक्लिक था, साइक्लिक में दिस इज व्हाट हैपेंड. क्लियर हो गया बेटे? Yes, ma'am. ठीक है, ओके. सो हमने लाइट डिपेंडेंट कर लिया. अब हम आ गए बेटे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, which is also known as Kelvin cycle, and it will take place in the stroma. ठीक है, अब इसके क्या क्या स्टेप्स हैं. अब यहाँ पे बेसिकली बेटा क्या हो रही है, ये जगह है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी. तो अभी तक जो हमने लाइट डिपेंडेंट स्टेज पढ़ी उसमें कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र नहीं था, मगर अब वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज होगी. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बेसिकली बेटा जो यूज चीज हो रही है, दैट इज द कार्बन देयर. So the fixation of carbon dioxide is a light independent process in which what happens with a carbon dioxide, there is only one carbon.
but then it reacts with a 5 carbon sugar, ठीक है, और 5 कार्बन शुगर है, उसका नाम क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, RUBP, ठीक है, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, तो जनरली पेपर में, ठीक है, आप इधर यूज दिस और यू यूज द कंप्लीट नेम. सो राइबोलोज बिसफॉस्फेट इज अ 5 कार्बन शुगर, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर खुद अपना एक कार्बन है, ठीक है. सो ये दोनों कंबाइन होके दे विल एक्चुअली फॉर्म एन अनस्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड हो, ठीक है. बट बिकॉज इट इज अनस्टेबल इट गेट्स ब्रोकन डाउन. But generally, this carbon dioxide, it combines with ribulose bisphosphate, मगर there is a presence of enzyme which is known as, उसका नाम याद है बेटे? What is the enzyme used? Rubisco. Rubisco. हाँ, Rubisco. ठीक है, ये एंजाइम है. इसकी प्रेसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है. दोनों मिले, दोनों के कार्बन मिला के बेटा 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है विच इज इनस्टेबल, बट देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 molecules of 3 कार्बन, क्योंकि 6 molecules है बेटे, जब वो स्प्लिट होंगे तो 3 कार्बन के 2 molecules बन जाएंगे, एंड दोज आर नोन एज ग्लेसरेट 3 फॉस्फेट, ठीक है, GP, और कभी कभी हम इसे फॉस्फोग्लिसरेट भी बोलते हैं, तो PGA. सो दोस टू टर्म्स यू विल बी एबल टू सी. सो ईदर ग्लेसरेट 3 फॉस्फेट GP, एंड इट इज आल्सो नोन एज फॉस्फोग्लिसरेट. तो उसके दो नाम है, ठीक है. सो आपका सबसे पहले तो काम ये हुआ, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon dioxide reacts with ribulose bisphosphate in the presence of Rubisco. It forms a 6 carbon compound which is unstable. It gets broken into 2 molecules of 3 carbon compound which is glycerate 3 phosphate or GB. यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे? ठीक है, अब आगे हम इसका पूरा Yes, साइकिल से ma'am. देखेंगे, बट अभी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए. ये स्टेप नंबर 1 है. स्टेप 2 में क्या हो रहा है? अब यही जो ग्लेसरेट 3 फॉस्फेट है बेटे, now in the presence of ATP. अब ये ATP कहाँ से आ रहा है? Because from the light dependent stage, वहां से बना था. So this ATP and the reduced NADP. So now बेटे this, अब इनका रोल यहाँ पर आ रहा है. So glycerate 3 phosphate in the presence of ATP and reduced NADP is reduced to triose phosphate. And why we are saying reduced? Because now बेटा ये क्योंकि reduced NADPH था, इसका हाइड्रोजन actually is now going to this part. Glycerate 3 phosphate में जा रहा है. So that is why it is being reduced. So addition of hydrogen is reduction. ठीक है? So glycerate 3 phosphate is being reduced to triose phosphate. Triose का मतलब भी again बेटा 3 कार्बन. तो glycerate में भी 3 कार्बन थे. अभी triose में भी हमारे पास 3 कार्बन ही है. मगर triose phosphate उसकी reduced form है. ठीक है? It means it has this hydrogen attached to it also. यहाँ तक समझ आ गया बेटे? Yes, ma'am. ठीक है. और रिमेंबर क्योंकि हमारे पास ग्लेसरेट 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो ट्रायोस फॉस्फेट के भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ही हैं, बट सिर्फ फर्क क्या है, ये अभी रिड्यूस्ड फॉर्म में. ठीक है. अच्छा, अब नाउ दिस इज बेटा व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. फिफ्थ सिक्स्थ, अब जो ट्रायोस फॉस्फेट है बेटा, इसका फिफ्थ सिक्स्थ इज यूज्ड टू रीजेनरेट राइबोलोज बिसफॉस्फेट. क्योंकि जब ये साइकिल चलता है बेटा, तो हमें ये तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट होगा ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कैसे होगी? फिफ्थ सिक्स का मतलब है 5 आउट ऑफ 6. ठीक है, तो उसका मेजर चंक जो है, इट इज एक्चुअली गोइंग टू रीजेनरेट दिस राइबोलोज बिसफॉस्फेट. ठीक है. पीछे कितना बचा बेटे? 1 आउट ऑफ 6 बचा. जो ये एक है ना, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज यूज्ड टू मेक द स्टार्च. तो मेजॉरिटी जो मेजर चंक है उसका, वो दोबारा राइबोलोज बिसफॉस्फेट में रिसाइकिल हो जाता है. रिमाइंडर जो 1/6 है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर मॉलिक्यूल व्हिच आर नीडेड बाय प्लांट. अब वो मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ जा सकते हैं? ठीक है. सो सम ऑफ दीज ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है. अब रिमेंबर बेटा, हमने कहा था 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं 3 कार्बन के. तो अगर तुम खुद इमेजिन करो बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन के, तो मल्टीप्लाई करके देखो तो टोटल कितने कार्बन हुए हमारे पास अभी यहाँ पे? 2 मॉलिक्यूल्स हैं और 3 कार्बन कंपाउंड है. तो अगर तुम मल्टीप्लाई करो, टोटल कितने कार्बन है तुम्हारे पास यहाँ पे अभी? 6 carbon. ठीक है. तो समझो, तुम इसको इस तरह समझ लो, 6 कार्बन में से 5 कार्बन चले गए राइबोलोज को बनाने में. और राइबोलोज क्या था? इट वाज अ 5 कार्बन शुगर, है ना. और जो एक है वो ट्रायोस किस में आगे जाके यूज हो रहा है टू मेक, अब क्या क्या चीजें बन रही है. ठीक है. सो अब व्हाट हैपेंस, सम ऑफ दीस ट्रायोस फॉस्फेट्स विल कंडेंस होने के बाद दे बिकम हेक्सोज फॉस्फेट. हेक्सोज का मतलब अब वो 6 कार्बन कंपाउंड्स बन गए. ठीक है. और ये वो वाले हैं बेटे जो हम 1/6 की बात कर रहे हैं. 5/6 तो चले गए आगे. So some of them condense
ठीक है, to form hexose phosphates which in turn then are used to produce starch for storage. तो अब उसके साथ हम ये कर सकते हैं बेटा, it can be used to form starch, it can be used for like for the production of sucrose for translocation. और ट्रांसलोकेशन क्या चीज होती है बेटे? ट्रांसलोकेशन कौन सा प्रोसेस है? Ma'am, movement of substances. along the phylum. ठीक है, फिलोम Yes, के थ्रू जो चीजें ट्रांसफर होती है वो ट्रांसलोकेशन है. ठीक है, या सेलुलोज बनेगा. तो प्लांट के लिए ये चीजें बन सकती हैं. ठीक है, मगर याद रखो अभी ये सारी चीजें जो है, जो अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन हो रही है, स्टार्च फॉर स्टोरेज, सुक्रोज फॉर ट्रांसलोकेशन और सेलुलोज फॉर मेकिंग द सेल वॉल्स. मगर कार्बोहाइड्रेट के अलावा और चीजें भी बन सकती हैं. ठीक है, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, सो लिपिड्स भी बन सकते हैं. ठीक है, और रिमेंबर बेटे लिपिड्स पे कहाँ यूज हो सकते हैं? जो प्लांट की भी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली, वो भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है. सो द सेम लिपिड कैन देन बी यूज्ड फॉर द सेल मेम्ब्रेन्स. ठीक है, इट देन कैन बी यूज फॉर एसिटाइल कोएंजाइम ए. अब प्लांट को भी तो बेटे रेस्पिरेशन चाहिए ना, एटीपी प्रोडक्शन वहां भी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट के अंदर भी है. ठीक है, सो अब उसमें से बहुत सारे फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होकर दे आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन. ठीक है, और दे कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस. तो सिर्फ वो जो रिमेनिंग 1/6 है उससे ये सारे प्रोसेस हो सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट भी बन रहे हैं, लिपिड भी बन रहे हैं, और अमीनो एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस भी बन रहे हैं. समझ आई बेटे? yes, ma'am. ठीक है, सो थोड़ी इन्होंने हिस्ट्री बता दी कि बेसिकली केल्विन साइकिल 1946 में देयर वाज अ पर्सन बेंसन और उसका दोस्त था आई थिंक बशाम, या ठीक है. सो दे एक्चुअली दे डिड दिस एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम 1946 टू 1953. और एंजाइम का यहाँ इन्होंने जिक्र कर दिया है. ठीक है, सो शॉर्टर वर्जन में यूजुअली बेटा वी जनरली यूज द शॉर्टर वर्जन रुबिस्को, बट उसका फुल नेम क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. ठीक है, ribulose bisphosphate carboxylase rubisco, and it catalyzes the combination of carbon dioxide and ribulose bisphosphate, or generally it is known as the most common enzyme. तो ये तो हमने अभी सारे पॉइंट्स पढ़े, अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी बेटा कि आई होप इट बिकम्स क्लियर टू यू नाउ. देखो, दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स. अब यहाँ पे स्टेज नंबर 1 सिंपली आपको दिखाई कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक है, एंड दिस वाज राइबोलोज. कहाँ दिखाया इन्होंने? आई थिंक यहाँ पे ये पूरा राइबोलोज ही आ रहा है. ठीक है, सो राइबोलोज बिसफॉस्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे कंबाइन in the presence of rubisco, ठीक है, they give you a 6 carbon compound first बेटा which is unstable. वो उन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया. It gets broken into 6 molecules. अब ये 6 क्यों दिखा रहे हैं? ठीक है, इस तरह देखो what they are telling you. They are showing you 3 molecules of carbon dioxide. ठीक है, and they are showing you 3 molecules of ribulose bisphosphate. ठीक है, तो रेशियो दोनों का सेम है. ठीक है, बुक में आई थिंक उन्होंने 1:1 का रेशियो दिखाया है, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर दोनों जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उतना ही हमारे पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट है. सो दीज टू आर रिएक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को. ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस बेटे, दे मेक अ 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड व्हिच गेट्स ब्रोकन अप इनटू ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट. ठीक है, उसके हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. अब ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने 6 मॉलिक्यूल क्यों लिखे हुए? जनरली बेटा याद रखना, जब हम लोगों ने 1 यूज किया था तो एक मेरे पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला के हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन रहा था 6 कार्बन कंपाउंड का, विच गॉट ब्रोकन अप इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन. ठीक है, अब अगर मैं 1 मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ तो 3 कार्बन, यहाँ हम 3 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं. तो अब खुद इमेजिन करो बेटे, तो हो जाएंगे 6 मॉलिक्यूल्स इस तरह हमारे पास. तुम उसी चीज को मल्टीप्लाई करके देख लो, जब 1 से 2 बन रहे हैं तो 3 से 6 बन जाएंगे ना. ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या हो रहा था? अब ये आपके पास जो ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट था बेटे, व्हाट वाज हैपनिंग? इट वाज एक्चुअली गेटिंग रिड्यूस्ड. वो रिड्यूस किस वजह से हुआ था? दिस एटीपी एंड दिस बेटे NADPH व्हिच केम फ्रॉम द लाइट डिपेंडेंट स्टेज. इसकी वजह से इट वाज गेटिंग रिड्यूस्ड. रिड्यूस होने के बाद इसने क्या बनाया बेटे? ट्रायोस फॉस्फेट. ठीक है, तो ट्रायोस फॉस्फेट के अंदर दिस रिड्यूस फॉर्म. तो सी बेटा ATP अब अगेन 6 क्यों दिखाएं? हर मॉलिक्यूल की एक ATP. ठीक है, so there are 6 molecules, 1 ATP for each molecule. So 6 ATP will convert into 6 ADP. Similarly 6 NADPH. ठीक है, अब ये यहाँ पे बेसिकली बेटा अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो गई क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया. So NADPH जो है वो तो ऑक्सीडाइज हो गया, बट ट्रायोस फॉस्फेट इज द रिड्यूस फॉर्म में. और अब आप देखें, यही जो ADP है,
अब ये स्ट्रोमा में है ना, ये एडीपी और ये एनएडीपी, ये दोनों वापस से आपके चले जाएंगे स्ट्रोमा के थ्रू फोटो सिस्टम्स के अंदर पे यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिसाइकिल होते रहेंगे, समझे? क्योंकि कैरियर मॉलिक्यूल था ना, कैरियर मॉलिक्यूल दैट वाज टेकिंग अप द हाइड्रोजन दैट वाज रिलीज्ड फ्रॉम द थायलाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब ये वहां जाके दोबारा रिसाइकिल हो जाएंगे, तो दे विल बी यूज्ड अगेन। अब ये आपका बन गया ट्रायोस फॉस्फेट। ठीक है, देन अगेन अब शुरू से बेटा हम लोगों ने 6 मॉलिक्यूल्स के साथ शुरू किया था, तो वी अगेन है 6 मॉलिक्यूल्स। ये सिंपली अभी आपको वो रेशो दिखाने की कोशिश करें। रिमेंबर मैं थोड़ी देर बाद की थी 5th 6th एंड 1/6 का रेशो। अब इस 6 में से 5 आर एक्चुअली बेटा गोइंग अप, they will be recycled to form ribulose bisphosphate, and one of them will be used to make, like it can be used to make beta starch, sucrose, या further आगे जाके lipids या amino acids। ठीक है, so this one will be actually utilized here। और triose phosphate के बारे में क्या था बेटा, then it becomes condensed and it forms a hexose sugar। ठीक है, तो अभी ये अगर 6 कार्बन कंपाउंड था यहाँ पर, सॉरी 3 कार्बन कंपाउंड था, कंडेंस होने के बाद बेटा इट बिकम्स अ 6 कार्बन कंपाउंड, सो दिस इज ग्लूकोज हियर। और जो रिमेनिंग 5 है बेटा, दे मूव ऑन एंड दे मूव ऑन टू मेक राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब अगेन अब यहाँ तुम देखो उन्होंने 3 एटीपी और 3 एडीपी शो किया हुआ है, तो जस्ट इमेजिन बेटे यहाँ पे हम कह रहे हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट। राइबोलोज बिसफॉस्फेट था 5 कार्बन शुगर, तो जरा तुम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, व्हाट डू वी गेट, हाउ मेनी कार्बन? 15 कार्बन। 15। ठीक है, तो सिमिलरली अब क्योंकि यहाँ पे भी 5 मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, तो 5 मॉलिक्यूल्स का मतलब है 15 कार्बन। ठीक है, तो उतनी ही हमें एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इन्होंने दिखा दिया कि पर मॉलिक्यूल इज अ 3 और यू विल गेट द सेम, और ये इट विल कीप ऑन गेटिंग रिसाइकिल्ड। ठीक है, इसलिए मेजर चंक चला जाता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट में, स्मॉलर चंक गोज टू मेक ट्रायोस फॉस्फेट। तो अब आपको केल्विन साइकिल समझ आ गया बेटा? यस मैम। ठीक है, अच्छा एक मिनट बेटा होल्ड करना, मैं वॉल्यूम इसका बंद करूँ। ओके देन, क्लियर हो गया बेटे, लाइट डिपेंडेंट लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। यस मैम। ठीक है, अब इसी का पूरा हम समरी कर रहे हैं। तो सी बेटा, दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। लेट मी टेक आउट द, ठीक है बेटे, सो लाइट डिपेंडेंट स्टेज कैसे शुरू हुई? फोटो सिस्टम 2 ने लाइट एब्जॉर्ब की, एसेसरी पिगमेंट्स टेक दैट एनर्जी व्हिच इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड एंड दे लीव। ठीक है, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर देन कॉट बाय दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड वन बाय वन। और ये देखो बेटे, जैसे जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ वन बाय वन ट्रांसफर हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन इज आल्सो एंटरिंग। ये वही हाइड्रोजन है जो पहले इसके अंदर थी, एंड देन बेटा बिकॉज एटीपी सिंथेसिस हुई थी, तो हाइड्रोजन एक्चुअली वेंट आउट, so the same hydrogen because it's outside in the system it goes in। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर के अंदर, इसकी वजह से प्रोटॉन्स आर एक्चुअली गेटिंग इनसाइड आल्सो। ठीक है, अच्छा व्हाट हैपेंस, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, लाइक कमिंग हियर बिकॉज ऑफ द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू 2 हाइड्रोजन protons, and 2 electrons। These are the protons which stay here, which are then released by this pump, ठीक है, outside, और इलेक्ट्रॉन्स जो है they are used by this system। अच्छा, अब यहाँ से जाने के बाद वन बाय वन they go to the photosystem 1। photosystem 1 में बेटा when they gain energy they also leave, but then they are also caught by electron carrier, but then this electron is used। ठीक है, so this carrier molecule is already there। तो अभी याद है बेटा यहाँ पे जो हमने बात की थी कि ये NADPH जब आपका ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा था, it was actually the phosphate phosphate was getting reduced into triose phosphate। तो ये अब ये फॉर्म आ गई, ये it is the same NADP or same hydrogen which is actually being used here now। Carrier molecule, it will again better take up the hydrogen which is released, और the same ATP जो यहाँ पे आपका अब ये जो ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है, यही ADP है जो इधर जाके बेटा it is actually helping in converting it back to ATP। So everything is being recycled। समझ आ गई बेटे? अब reduced Yes, ma'am. NADP or ATP, now they are going into this system। So we started with ribulose bisphosphate plus carbon dioxide। These two will react in the presence of Rubisco। They will make 2 molecules of 3 carbon compound which is known as glycerol 3 phosphate। It will then be reduced in the presence of ATP and NADP। अब यहाँ पे तुम देखो उन्होंने 1 molecule खाली दिखाया है, ठीक है, ताकि तुम आराम से तुम अगर 1 molecule भी करते तो तुम्हें याद आसानी से रह जाएगा। अगर तुम मॉलिक्यूल नहीं लगा रही, इसलिए मैम बेटा रेशो सेम है। तो 1 molecule के हिसाब से 2 molecules उसके बने, ठीक है, और
ठीक है, since it will be reduced to triose phosphate. Triose phosphate के अंदर क्या होना था बेटा, 5/6 of it will actually go to make this tribulose bisphosphate again. 1/6 of it will go to make the sugar. ठीक है, अब शुगर में क्या क्या बन रहा था, स्टार्च, सुक्रोज बन रहा है और सेलुलोज बन रहा है. ठीक है, and the rest can convert into lipids which can be used by the plasma membrane, and then others can be converted into proteins. समझ आ गया बेटा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा ये इसकी एक और पिक्चर है, बट ये काफी मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो खुद ही बेटा एक नजर जरा देख लो. ठीक है, ये आपको थाइलाकोइड दिखाया उन्होंने. ठीक है, और रिमेंबर बेटा फोटोसिस्टम 4 1 दोनों थाइलाकोइड में है. हम अभी तक जनरल एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे थे, बट दे आर डेफिनेटली इन द सेम मेम्ब्रेन. सो देयर इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन light or water splits up, oxygen is released as a waste product. ठीक है, and then look at bit how the cycle moves on. So water और carbon dioxide दोनों बाहर से आ रही है, but carbon dioxide is only used in the Calvin cycle, और photolysis का process light dependent के अंदर होता है. Then have a look बेटा, NADPH और ADP यहाँ बने, they go and they are used in this system, और वापस बेटा जब यहाँ पे चीजें reduce हो जाती हैं, they are released back. So again, the carrier molecule comes back here. ADP is used again for the conversion of ATP. So this cycle actually goes on. Okay, clear? Yes, ma'am. अच्छा, अब मैं आपको इसकी भी दिखा देती हूँ वीडियो, ताकि एनिमेशन काफी अच्छी है, वो देख के फिर we'll move on to the next phase. Photosynthesis uses light energy, water, and carbon dioxide in two processes to ultimately produce energy molecules like glucose or building molecules like cellulose. Oxygen is a byproduct of the light-dependent reaction, and the ATP and NADPH that are made in the light-dependent reaction fuel the light-independent reaction, or Calvin cycle. Let's take a deeper dive into exactly how these processes really work, starting with the light-dependent reactions which occur on the thylakoid discs. The membrane of the thylakoid discs have proteins embedded in them which carry out the light reaction. Outside the thylakoid disc is the stroma, and inside is the thylakoid space. Light strikes photosystems, which are clusters of chlorophyll and other light-harvesting pigments. When light excites electrons in the chlorophyll of the photosystem, the chlorophyll is photoactivated. There are two photosystems in the membrane, but they were discovered out of order. Photosystem 2 is actually the first to be activated in the light reaction. 2 photons of light have excited 2 chlorophyll electrons in photosystem 2, but they need to be captured in order to do work. Plastoquinone will accept the 2 electrons, becoming reduced in the process. The chlorophyll in the reaction center of PS2 is a strong oxidizing agent and will split a water molecule to replace the missing electrons, leaving 2 protons and an oxygen ion in its wake. This process is called photolysis. Photolysis occurs rapidly and constantly in the presence of light, so another water molecule will be split and the 2 oxygen atoms will form molecular oxygen, which can then diffuse out of the plant. It's a byproduct or waste product of photosynthesis, since it's not used here. Let's go back to our electrons in plastoquinone. Plastoquinone carries electrons from PS2 to the electron transport chain located in the thylakoid membrane. As electrons are transferred in the electron transport chain, energy is released and hydrogen ions are pumped across the thylakoid membrane into the thylakoid space. The concentration of protons in the thylakoid space is therefore increased by photolysis and the electron transport chain. The protons can exit the thylakoid space through ATP synthase. As they move through ATP synthase, ADP is phosphorylated to make ATP, which can be used in the light-independent reactions. This step in photosynthesis is very similar to the chemiosmosis process in cellular respiration. Our electrons, however, are still not done with their journey. At the end of the electron transport chain is photosystem 1.
Light strikes photosystem 1 and excites electrons, which are passed to ferredoxin. The electrons are replaced by ones carried from the electron transport chain. 2 molecules of ferredoxin are used with NADP reductase to reduce NADP to NADPH. This is the final electron acceptor. This molecule will be used in the light-independent reactions. If NADP runs out, cyclic photophosphorylation will occur. This involves the electron transport chain and photosystem 1. The electrons move from ferredoxin back to plastoquinone through the electron transport chain, which brings in hydrogen ions. These ions will diffuse through ATP synthase, and the electrons continue the cycle through photosystem 1 again. This keeps the production of ATP high, since more ATP will be needed than NADPH in the Calvin cycle. Now, the ATP and NADPH produced from the light reactions can be used to power the light-independent reactions of the Calvin cycle. The Calvin cycle occurs in the stroma, which fills the spaces of the chloroplast. This is where the molecule building actually occurs. The Calvin cycle is also known as the light-independent reaction, because light is not directly used in this process. The purpose here is to produce carbon-based molecules that can be used for energy, storage, and structural purposes. The carbon source for all photosynthetic organisms is carbon dioxide. The first step of the cycle is called carbon fixation because carbon dioxide is converted or fixed into an organic compound. The carbon dioxide reacts with ribulose bisphosphate, a 5-carbon compound, and water. The enzyme that catalyzes this carboxylation is called ribulose bisphosphate carboxylase, or Rubisco for short. This produces 2 molecules of glycerate 3-phosphate. These 2 molecules are then reduced by 2 NADPH and 2 ATP to make 2 molecules of triose phosphate. Triose phosphate is really the goal product of the Calvin cycle. In reality, however, the Calvin cycle will use 3 carbon dioxide molecules at a time to ultimately produce 6 triose phosphate molecules. But while the effort, the triose phosphate molecule is a simple carbohydrate that can be used by the plant to build larger molecules. However, it's also needed to remake the ribulose bisphosphate that was used in the beginning of the Calvin cycle. So of the 6 made, 1 triose phosphate will be used by the cell for whatever it needs, and the other 5 triose phosphate molecules will be recycled back into 3 molecules of RUBP. This means 3 turns of the Calvin cycle make 1 triose phosphate to be used by the cell, and 3 RUBP are recycled. It uses 6 NADPH and 9 ATP to form the triose phosphate and reform the RUBP. To make a hexose sugar like glucose, 6 turns of the Calvin cycle will be needed to make the 6-carbon sugar. So after 6 turns, 1 hexose molecule can be made, which uses 6 carbon dioxide molecules, 12 NADPH, 18 ATP, 6 RUBP, and regenerates the 6 RUBP as well. The spent ADP and NADP molecules can be recharged in the thylakoid discs by the light reaction. Okay, so ab energy with it is needed to produce carbohydrates and other compounds. So we just talked about what is being made. So let's just recap. The plants will produce carbohydrates. Carbon fixation is actually what are we doing? Because carbon dioxide में carbon देखो gas की form में you're converting that into a solid. ठीक है? That's the reason हम उसे carbon fixation की बात कर रहे होते हैं. ठीक है? So what happens because of that? The reaction is endothermic. Why are they saying the reaction is endothermic? This whole process? Because it Photosynthesis? requires energy. हाँ, क्योंकि light energy absorb हो रही है ना. Endothermic reaction का ये मतलब है ना energy is being absorbed. और photosynthesis में energy आपकी light energy है. ठीक है? Then we know कि बेटा energy is needed for photolysis also. उस water को break down के लिए भी चाहिए. And then light energy gets converted into chemical energy. So, so that's the general we needed to do. Achha, now, but let's talk about the limiting factors also. So, 3 limiting factors ki generally better we discuss about. So, one is temperature, light intensity, and carbon dioxide. Okay, or at some time with water ki bhi baat karte hain, but generally these 3.
ठीक है, दे एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर्स ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट मींस इन तीनों की वैल्यू अप एंड डाउन होंगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट डेफिनेटली बेटा कम या ज्यादा हो सकता है. ठीक है, सो लिमिटिंग फैक्टर कैन लिमिट द रेट ऑफ रिएक्शन if it is below the optimal level for reaction. ठीक है, और इन तीन टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, ये तीन चीजें जिसकी वजह से अफेक्ट होगा फोटोसिंथेसिस में. सो लेट्स टॉक अबाउट लाइट इंटेंसिटी फर्स्ट बेटा. अच्छा, अब वी नो के बेटा लाइट डिपेंडेंट स्टेज होगी जब वहां पे लाइट होगी. ठीक है, सो लाइट इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. ठीक है, एंड ठीक है, अगर जनरली भी तुम देखो बेटा लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वी विल एक्सपेक्ट मोर फोटोसिंथेसिस टू हैपन. बट इफ यू टॉक अबाउट नाइट, रात के वक्त तो लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही उस तरह. तो इसलिए हम लाइट इंटेंसिटी को कह रहे हैं इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर एट नाइट. ठीक है, तो दिन के वक्त इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर. दिन के वक्त बहुत ज्यादा रोशनी है, फोटोसिंथेसिस हो रही है. बट रात में बिकॉज देयर इज लेसर लाइट या देयर इज नो लाइट, ठीक है, तो इट बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर. तो समझ आ गई बेटे हम लिमिटिंग फैक्टर क्यों बोल रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है, ओके. अब when the intensity of light ranges from low to medium, तो जनरली बेटा यहाँ पे आपको दिखाया है दिस इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस तरह ही ऊपर जा रहे हैं. तो शुरू में लाइट इंटेंसिटी थोड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रही है. ठीक है, तो यू कैन लुक एट बेटा कि किस तरह उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है. बट आफ्टर सम टाइम इट सीम्स लाइक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. जितनी लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है उतनी उसकी फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है. But once the intensity of light is high, there is a plateau in the rate of photosynthesis. अब अगर हम ये कह रहे हैं कि लाइट इंटेंसिटी की वजह से फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, तो अब यहाँ पे प्लेट्यू किस वजह से आ गया? इसका मतलब ये है कि बेटा इस स्टेज में अब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है. हमारे पास लाइट के अलावा दो और फैक्टर्स थे, टेम्परेचर भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था. ठीक है, तो अब उनमें से कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर होगा. अब लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा. ठीक है, तो जब तक ये बढ़ रहा था ठीक था, बट अब कांस्टेंट लाइट है. ठीक है, मगर अब यहाँ पे प्लेटू हो गया. ठीक है, तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा लाइट है तो बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती रहेगी. वो लिमिट के बाद में वो प्लेटू बन जाएगा. At this point, now your limiting factor has changed from light intensity. So it can either be temperature, it can either be carbon dioxide. ये चीज समझ आ गई बेटे? Yes, ma'am. Okay. Now let's see what they're saying there. So when temperature and carbon dioxide concentration remain constant, so generally बेटा अगर तुम light intensity को ही investigate कर रही हो तो हम carbon dioxide और temperature को constant रखेंगे. ठीक है, we know कि rate of photosynthesis increases as light intensity increases, and the greater the light intensity, the more energy supplied to the plant. Therefore, we know कि the faster the light dependent reaction will be. Okay. अच्छा, अब light dependent reaction में we know बेटा ATP बन रहा था और reduced NADP भी बन रहा था. ठीक है, so because of that we have more ATP, you have reduced ADP. ठीक है, we know that can be used in the Calvin cycle. So दोनों चीजें बहुत अपनी great amount में हो रही हैं. But इसमें they are saying कि light intensity is said to be the limiting factor in the photosynthesis. ठीक है, so generally what happens बेटा, if light intensity continues to use, relationship will no longer apply and the rate of photosynthesis will reach a plateau. अब यहाँ पे बेटा उन्होंने आपको रीजन दिया है why the plateau is reached. At this point, light intensity is no longer a limiting factor. ठीक है, जहां प्लेट्यू बना अब वो जिस फैक्टर को हम मॉनिटर कर रहे थे वही लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा है. इट मींस देयर इज अनदर फैक्टर दैट हैज बिकम द लिमिटिंग फैक्टर नाउ. ठीक है, अब द फैक्टर्स व्हिच कुड बी लिमिटिंग द रेट व्हेन द लाइन ऑन द ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल, दे इंक्लूड कि मे बी टेम्परेचर कम हो गया या बहुत ज्यादा हो गया. बहुत ज्यादा भी होगा तो इमेजिन करो बेटे इन रिएक्शन में हमें एंजाइम्स चाहिए, एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे. ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा. ठीक है, व्हाट आल्सो हैपेंस, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी है मगर कार्बन डाइऑक्साइड लेट्स से एटमॉस्फेयर में ज्यादा नहीं है. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगी तो वो केल्विन साइकिल में काम कैसे करेगी? ठीक है, तो अगर प्लेट्यू रीच हो गया है और लाइट इंटेंसिटी से आगे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं हो रही है, इट मींस अब इन दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ मसला हो गया. या तो टेम्परेचर बहुत कम या ज्यादा है, क्योंकि कम भी होगा बेटा तो एंजाइम्स उस वक्त भी बहुत स्लो काम करेंगे, और अगर ज्यादा है तो वो डीनेचर हो जाएंगे. और कार्बन डाइऑक्साइड खुद सोचो कि अगर नहीं होगी तो केल्विन साइकिल आगे कंटिन्यू नहीं करेगा. तो आपको समझ आ गई बेटा लाइट इंटेंसिटी के वहां पे लिमिटिंग फैक्टर किस तरह काम कर रहा है? Yes. ठीक है, अच्छा लेट्स सी बेटा व्हाट टेम्परेचर इज. अब अगेन बेटा अब इसके अंदर भी टेम्परेचर की भी हमें एक ऑप्टिमम रेंज चाहिए. सो दिस ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड वी नो कि बेटा अब यहाँ पे भी अगर तुम देखो ये अगेन रेट ऑफ रिएक्शन है और दिस इज द टेम्परेचर. सो एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग तो एक सर्टेन लिमिट तक तो यू कैन सी बेटा फोटोसिंथेसिस इज हैपनिंग.
ठीक है, अब इसको डिड्यूस करना इजी है। अब वाई बेटा यू थिंक फोटो रेट एकदम नीचे चला गया है, तो अब तुम मुझे बताओ बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बट फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, क्या रीजन होगा इसका? मैम एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर रीच होके गुड उससे मतलब आगे चला गया गुड, टेम्परेचर। ठीक है। और जनरली जैसे इन्होंने बताया कि अराउंड 45 एंड अबव, तो ज्यादातर प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 45 एंड अबव नहीं कर सकते, सो जनरली हम उनको C3 प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, जो 45 से आगे नहीं, उनके एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ओके, so yes, you gave the same reason. If the enzyme is too low, sorry, temperature is too low, enzymes become inactive. If it is very high, generally beta 45 से ज़्यादा हो जाए तो denaturation will occur. Or because of that, what will happen beta? Stomata closes when the temperature is too high. उसका reason बेटा कि कोई water conserve करना पड़ता है plant को, तो automatically stomata close हो जाएगा, ठीक है? And this closure will limit the amount of carbon dioxide which is entering the leaf. ठीक है, अब तुम देखो सिर्फ टेम्परेचर के उससे, अब देखो दूसरा इफेक्ट उसका कार्बन डाइऑक्साइड पे भी पड़ रहा है, ठीक है? अब इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एंटरिंग तो इवेंचुअली बेटा फिर फर्दर, अब देखो अब इस केस में टेम्परेचर के बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड ही कम है तो फोटोसिंथेसिस और फर्दर नहीं होगी, ठीक है? तो सी हाउ दीस थ्री आर रिलेटेड। क्लियर हो गई बेटा ये चीज? यस मैम। अच्छा, so let's see. So for most metabolic reactions we know beta कि temperature has a large effect. So usually beta light dependent में temperature has no significant effect, ठीक है? Because generally what is happening as these reactions are driven by energy from the light, ठीक है? क्योंकि वहां पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा दे वर गेनिंग एनर्जी, और लाइट एनर्जी की वजह से दे वर एक्चुअली गोइंग टू द आउटर शेल, ठीक है? बट टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। सो दे आर सेइंग कि लाइट डिपेंडेंट स्टेज में टेम्परेचर का ऐसा कोई खास रोल नहीं है, ठीक है? अफेक्ट कहाँ पे जाता है इसका? केल्विन साइकिल के ऊपर होता है। केल्विन साइकिल पे क्यों हो रहा है? क्योंकि केल्विन साइकिल वो जगह थी जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही थी। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं होगी, ठीक है? तो टेम्परेचर का इफेक्ट आपके केल्विन साइकिल पे पड़ रहा है। सो ठीक है, सो लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज इज बीइंग अफेक्टेड, और वहां पे जो एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस है, सो इफ यू रिमेंबर बेटे रुबिस्को वाज इन्वॉल्व देयर, ठीक है? तो ये रिएक्शन ही पे कैटलाइज नहीं होगा अगर एंजाइम्स डीनेचर हो गए, तो देयर इज नो रुबिस्को दैट कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? सो ये पूरा प्रोसेस आपका खराब हो जाएगा। तो टेम्परेचर मेनली अफेक्ट कर रहा है लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। क्लियर हो गई ये चीज बेटे? यस मैम। ठीक है, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड नाउ। अब फोटोसिंथेसिस बेटा वी नो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आ रही है तो वी नो कि बेटा फिर अगेन केल्विन साइकिल में वो हेल्प करेगी। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा आ जाए तो उस केस में भी यू नो कि बेटा स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी इनफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर, ठीक है? अब जरूरत नहीं है तो वो खुद ही क्लोज हो जाता है। और फिर देन यू कैन इमेजिन बेटा अगर वो क्लोज हो गया तो वट एवर कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर वो तो यूज हो जाएगी फोटोसिंथेसिस में। तो जनरली अगेन इसका ताल्लुक बहुत ज्यादा वही टेम्परेचर से है बेटा। तो यूजुअली ऑन अ वार्म सनी डे स्टोमेटा क्लोज होगा, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है, वाटर कंजर्व करना है, ठीक है? तो इन दिस केस बेटे कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है? फोटोसिंथेसिस कैन अकर fast when all the above mentioned factors are at right levels. If two factors are at perfect level while the other is not, it will still not make a difference. तो इस केस में बेटा हमें तीनों चीजें ऑप्टिमल लेवल पे चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीनों में से दो सही काम कर रही हैं तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस को होने के लिए ये तीनों के तीनों बेटा अपने ऑप्टिमम लेवल में वर्क करने चाहिए। क्लियर हुआ बेटा आपको यस लिमिटिंग मैम। रिएजेंट्स का? ठीक है, सो जस्ट सी बेटे कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता गया तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गई। अब यहाँ देखो जैसे हमने शुरू में नोटिस किया था बेटे लाइट इंटेंसिटी में, अब ये भी देखो बिल्कुल प्लेट्यू बन गया। तो अब इसका क्या तुम्हें लग रहा है क्या रीजन होगा? थिंक अगेन, कार्बन डाइऑक्साइड की मैम कंसंट्रेशन ज्यादा है, टेम्परेचर स्टोमेटा लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अगर तुम सोचो कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर भी ज्यादा चली गई है, स्टोमेटा को क्या होता है फिर? क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो जाएगा। वो क्लोज हो जाएगा तो और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी, तो इस वजह से प्लेटो बन गया बेटा। तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी ना उसके हिसाब से। जब तक ओपन था यस कार्बन मैम। डाइऑक्साइड एंटर हो रहा था तो वो हो रही थी फोटोसिंथेसिस, ठीक है? तो ये रीजन है। तो आपका जो स्टोमेटा वाला रीजन है तुम टेम्परेचर वाले में भी लिखोगी और तुम इसके अंदर भी लिखोगी, ठीक है बेटे?
So ये Okay. आपके limiting reagents है, limiting factors है, sorry. So rate of photosynthesis increases as carbon dioxide increases, and we know कि बेटा it is one of the raw materials required for photosynthesis. और carbon dioxide का role कहाँ पे था? Light independent, Kelvin cycle में. And we know that it is involved in the carbon dioxide fixation when Rubisco catalyzes a reaction of carbon dioxide with ribulose bisphosphate. Okay? So if there is more carbon dioxide present, you know Kelvin cycle will actually happen at a faster rate. Faster overall photosynthesis rate will be there. But this trend will continue until some other factor required for photosynthesis prevents the rate from increasing further because it is in short supply. So again बेटा इसके केस में वही होगा, या तो लाइट इंटेंसिटी का मसला होगा या टेम्परेचर का. तो तीनों को हमेशा ऑप्टिमल लेवल पे काम करना है. Only then a perfect rate of photosynthesis will take place. So limiting reagent समझ आ गए बेटे? Limiting factors इसके Yes, ma'am. photosynthesis के. ठीक है. अब एग्जाम टिप बेसिकली क्या है कि लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर, दे आर द 3 लिमिटिंग फैक्टर्स. ठीक है. And ठीक है, something that you have to learn, although they are saying a lack of water can also reduce the rate of photosynthesis. इसका क्या रीजन हो सकता है बेटे? वाटर कम होने से फोटोसिंथेसिस का क्या ताल्लुक है? मैम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होनी होती है. गुड. फोटोलाइसिस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी वहां से आ रहे थे, है ना? तो फिर वो वहां पे वो वाला प्रोसेस इफेक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो और अगेन वाटर शॉर्टेज है, उसके अंदर भी तुम्हें पता है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा क्योंकि वाटर कंजर्व करना है. ठीक है. सो दिस आल्सो कैन बी अ फैक्टर. ठीक है. और अगेन क्योंकि पेपर में आपको पता है बेटा ग्राफ्स आते हैं, यू हैव टू इंटरप्रेट देम. सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग कि in the section of the graph wherever beta you see that the rate is increasing, the line is going up. ठीक है. So it means कि limiting factor is whatever the label is on the x-axis. So जब भी आपको लगे कि line ऊपर जा रही है तो ग्राफ के अंदर if you look at this graph here, तो it means कि ये limiting factor है. तो ग्राफ के अंदर जहां तुम देखोगे ये लाइन ऊपर जा रही है तो it means limiting factor is there along the x-axis. ये limiting factor. ठीक है. सो दिस इज क्योंकि इंटरप्रीट करने को आएगा तो जस्ट एक याद करने का तरीका बता रहे हैं. ठीक है. इन द सेक्शन ऑफ द ग्राफ वेयर यू सी के दैट द रेट इज नॉट इंक्रीजिंग, इट मींस प्लेट्यू बन गया. सो द लिमिटिंग रिएजेंट विल बी समथिंग एल्स. सो व्हाटएवर इज देयर ऑन द एक्स एक्सिस इट इज नो लॉन्गर अ लिमिटिंग रिएजेंट. तो फिर हमें चूज करना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें यही मैं डायग्राम देखूं, यहाँ मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिटिंग किया हुआ है, मगर जहां ये प्लेट्यू बन गया तो इट कैन बी ईदर लाइट इंटेंसिटी और इट कैन बी टेम्परेचर, but it cannot be carbon dioxide. ठीक है. तो जब इंटरप्रीट करने को आएगा तो दिस इज हाउ यू विल गिव योर रीजन. समझ आई बेटे? यस. ठीक है. अच्छा, अब इसकी भी मैं एक लाइट तुम्हें छोटी सी वीडियो दिखा देती हूँ एंड देन विल एंड द लेसन. जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट क्लास में इसको डन करेंगे. ठीक है. The rate of photosynthesis is a chemical reaction, after all, relies on a few things. We're going to look at 3 different factors and how it affects the rate of photosynthesis. So number 1, light intensity. You need to be able to sketch a graph to show how each of these factors affects the rate of photosynthesis. So light intensity, you would expect to see this type of graph. As I give the plant more light, there is more photosynthesis. However, the graph will plateau. And at that point where the graph levels off, that's because although I'm giving it loads more light, I'm giving it even more light, it can't go any faster. The plant can't photosynthesize any faster. It's saying, well, I've got loads of light, but I haven't got any more, haven't got enough CO2 or enough water to go any faster. So something else has become a limiting factor at that point. You get the same shape graph with CO2 and it's for the same reason again. The higher the carbon dioxide levels, the more available for photosynthesis. But then it starts to level off because I'm giving it loads and loads of CO2, but I haven't increased anything else. And it's saying, well, that's fine, but I need more light now. I need more light and you're not giving any more light, so I'm going to level off. I can't go any quicker. I can't photosynthesize any faster. Temperature, our third factor, is a little bit different because we're going to see this graph here. So as you increase the temperature, the rate of photosynthesis also increases. Now, this is because the enzymes that control the reaction can work better at a higher temperature. The particles are moving around faster, there's more collisions, and the reaction goes quicker. So it goes up, 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 up. But at a certain point, the temperature gets too high for the enzymes because enzymes denature, they stop working, they change shape
with too much kinetic energy and they stop working, and so the reaction very quickly then plummets down to zero at that point.